Okay, thank you. Thank you for the patience. So let us begin with our demo session again. People who might have come to this session, okay, because there are regular batches which has been going on. So please, I request them who are been on regular basis. The, Today on this day, we are having a demo session for the Power BI, as you might have already conducted or you have already presented that. So those people who are here for regular sessions, you can leave. Yeah, you can continue to view this demo, but if you are already have this, it's better you practice on. So people who are there, make sure you, if you want something, if you have to write it down something, you can write it down. You can have a notes also for your introductory part. So this session is a demo purpose session where you will understand how Power BI is, let's say, being used in industry, how they are being utilized, and how effectively we are been using as a data analytics, okay, as a BI, business intelligence tools in a BI, in a data world. Okay, so let me continue. Okay, first of all, let me introduce myself. Hmm. My name is Deepak Bhatlavande. I'm a mentor. I'm a, let's say, trainer over here who is, or let's say, who will be going to teach you regarding Power BI, how to use this Power BI as a tool in your data analytical world, or in your BI tool, or let's say in BI world, business intelligence world. Okay, in the role of perspective like that. So over here, me as a data scientist, I have worked over, let's say, 10 plus years of experience in different fields, different domains, where I have knowledge of insurance, where I have knowledge of hospitality, I have a knowledge of pharmaceutical, I have knowledge of automotive, I have a knowledge of manufacturing, production, and business also. So overall, with this tenure of 10 plus years of experience, I did gain some, let's say not some, I would say lots of information, lots of knowledge, where now I'm utilizing myself as a trainer to give that particular information, to pass on this information to our youngsters. Okay, so today we are here with Arbor Academy, who is providing this particular opportunity for every one of us to learn and to earn many things. Okay, so Arbor Academy is a training institute which is providing you IT training and placements also over here. So you can get trained also and you can get placements also. Both have been provided over here. We are basically focusing on Power BI as one of a tool to give you a knowledge where you might get a promising career. Also, it's one of the lucrative job. Lucrative means a good amount of pay is being provided over here. As an certainly, if you want to enter any industry, IT industrial IT, without having any knowledge prior to the code, prior to the language, you can let's say get in with, isn't it? So we are focusing on this particular tool to give you a particular scenario, let's say opportunity to enter in any IT sector. So over here, this Power BI tool does not require any prerequisite. Okay, yes, it is very right. You have heard. There is no prerequisite. It does not require that you should be of, let's say, particular C++ or let's say from computer science field. It is not required to be that. You don't have to be from field. You don't have to be from MCA background or CA or let's say BCA background. Okay. Even if you don't know anything regarding how language works, how code works, it does no problem with that. Because Power BI is itself software which works on UI. UI means user interface. Okay. It works on UI. UI over here is nothing but user interface. Now you might have heard this word along your journey of this uh, information gathering regarding Power BI, that this is UI, in user interface, where you can click, you can select, you can drag and drop those options, okay, which is very much easier for anyone to move on rather than typing a code and getting that output as an requirement, where you can just select a particular button. आप एक बटन को सेलेक्ट करते हो और क्या करते हो, उसके ऊपर जो भी ऑप्शन होगा उसके बेसिस में बैकग्राउंड में, यू डोंट हैव टू सी दैट व्हाट इज गोइंग ऑन, everything in the background is going on by itself, isn't it? So that type of UI means your interface है. जैसे आप क्या करते हो, फोल्डर होता है, फोल्डर का ऑप्शन आप क्या करते हो, फोल्डर क्रिएट करते हो क्या कोड से, नहीं करते हो. What you do, you simply click on that option, folder it automatically creates folder. Like that you have that UI interface also. Again, people who may have let's say a bit upper kind of knowledge regarding functions from Excel, people who are knowing Excel will obviously get more advantages over here, because Power BI is nothing but also a combination of functions.
combination of different functions, which is basically provided by Microsoft only, MSI, right? Microsoft, okay, provided from Microsoft only. So people who are knowing different functions can obviously go through this Power BI tool and can utilize more compared to people who does not have any knowledge. For sure they will have more opportunities over here. Okay, but it doesn't mean कि जिनको नहीं पता है वो पीछे रह जाएंगे. आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है. आप फंक्शन के साथ में वर्कआउट करोगे तो आप भी साथ में उनके हाथ में हाथ करके आगे बढ़ सकते हैं. ओके, दैट इज अ गुड पर्सपेक्टिव. सो ओवर हियर आप जैसे ही पावर बीआई सीखोगे, पावर बीआई, you will be able to go through this BI role, business intelligence role. Okay, पावर BI यहाँ पे, पावर बिजनेस इंटेलिजेंस टूल यहाँ पे आपको ये रोल के रिगार्डिंग बताता है. जो बिजनेस इंटेलिजेंस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्लस करंट डेटा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेसिस में जो होता है डेटा जो वो वर्कआउट करते हैं, उस पर क्या करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस करते हैं मतलब क्या है, कुछ पैटर्न फाइंड आउट करते हैं, इंफॉर्मेशन फाइंड आउट, ट्रेंड फाइंड आउट करते हैं, सीजनैलिटी, बहुत सारी चीजें होती है जो फाइंड आउट करते हैं. और बेस्ड ऑन दिस इनसाइट, बेस्ड ऑन देयर इनसाइट कहते हैं कभी हम कहते हैं उनके इंफॉर्मेशन पे, उनके लेट्स से कंक्लूजन पे, जो भी आप कह सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन को मिलता है इन्फो पे, क्या करते हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं उनके मैनेजर को, उनके क्लाइंट को ना, उनके आगे जो यूजर है ये उनको प्रोवाइड करते हैं. बेस्ड ऑन दैट यूजर क्या करता है, डिसीजंस लेता है. ओके, सो दैट इज पर्टिकुलर बीआई एज अ रोल वर्किंग इन योर इंडस्ट्री. ओके, सो ओवर हियर, ओके, आगे बढ़ने से पहले ये जो टॉपिक से आपको ये सब बताने से पहले, आर्बर पर्टिकुलर जो एकेडमी है ये क्या है, इट्स एन ऑनलाइन आईटी कोर्स प्रोवाइडर बेस्ड ऑन पुणे. पुणे में ही इनका ऑफिस है, बानेर में है. आपको जैसे जैसे आप रजिस्टर करोगे, आपका पहले जो और इन्फॉर्मेशन जो आपका इसके साथ, आर्बर के साथ, हमारी कंपनी के साथ जुड़ते जाओगे प्लेसमेंट सेगमेंट सेक्टर के साथ में, तो आपको और इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता चलेगा. ओके, सिर्फ पावर बीआई ही नहीं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेस है जिसके बारे में आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन और मिल सकता है, इसके बारे में और आप जान भी सकते हो. बेसिकली क्या है, वी आर ऑफरिंग एन असिस्टेंस टू क्रिएट पर्सनलाइज एक्शन प्लान टू हेल्प यू अचीव योर गोल्स. बहुत बहुत लोगों का होगा यहाँ पे कि चलो बहुत जगह पे मैंने पहले वर्कआउट कर लिया, बहुत सारी जगह पे मैंने अप्लाई करके देखा है. नाउ इट्स बेटर, क्योंकि आईटी सेक्टर क्या है, अभी बूमिंग कर रही है, अच्छा अपॉर्चुनिटीज है. और ऐसे आपने सुना होगा एक टर्म, नो कोड और लो कोड. ओके, ये दो टर्म्स है जो चल रहा है आजकल में. नो कोड बेसिकली क्या है, जहां पे आप यूआई के साथ ज्यादा काम करते हो, यूजर इंटरफेस. ओके, और लो कोड क्या है, वेर एवर यू आर वर्किंग विथ हाई लेवल लैंग्वेज. ओके, अच्छा ये दोनों क्या है, एक तो जैसे आपको भी पता है, नो कोड मतलब जो पावर बीआई जो टूल ऐसे होते हैं जहां पे आपको कोड लिखने की मैं नहीं कहूंगा कि जरूरत ही नहीं पड़ती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 90% जरूरत नहीं पड़ती है. ओके, 90% टाइम ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है. और कोड लिखते भी क्या हो, तो आप फंक्शन है ना ऐसे टाइप में लिखते हो, तो कोड नहीं कहते उसे एक्चुअली. हाई लेवल लैंग्वेज मतलब क्या है, जहां पे लो कोड की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज है, आपने सुना होगा पर्टिकुलरली पाइथन करके. ओके, पाइथन करके लैंग्वेज सुना होगा आपने. पाइथन लैंग्वेज इज वन ऑफ अ हाई लेवल लैंग्वेज, जहां पे क्या होता है, आपको बहुत मिनिमम एफर्ट्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है, बट इट विल डू. ओके, वो अपने आप पीछे बैकग्राउंड में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, जो करना है कर लेता है. आपको बस जो उसके रिक्वायरमेंट सिंटैक्स फॉलो करो एंड यू विल हैव दैट डन. ओके, तो इस तरह का भी ट्रेंड चल रहा है. अच्छा, ये क्यों चल रहा है, क्योंकि क्या हो गया कि देखो, जो आईटी में पहले काम करते थे, ऐसे नहीं कि क्या उनका नॉलेज कम हो रहा है या फिर उनका आउटपुट कम हो रहा है, ऐसे नहीं है. ओवर अ पीरियड क्या होता है ना, कि हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन, कोई भी कंपनी यही चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हम यूटिलाइजेशन कर सके, उनके एक्सपीरियंस को. अगर कोड नहीं आता है तो क्या, बट किसी की क्लैरिटी होती है, कि किसी का डिप्थ जो सोचने का डिसीजन होता है, किसी का इंफॉर्मेटिव बेसिस नॉलेज होता है, वो बहुत अच्छा होता है, पर्सपेक्टिव्स अच्छे होते हैं, तो उनको भी यूटिलाइज करना है. ओके, भले उनको कोड ना है तो हम क्या कर सकते हैं, विथ नो कोड और लो कोड, उनके नॉलेज को, उनके एक्सपीरियंस को, उनके थिंकिंग पर्सपेक्टिव्स को हम यूज कर सकते हैं. फॉर दैट पर्पस दे हैव लेट्स से ऑब्टेन विद दिस पर्टिकुलर थिंग. सो वी आर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर आर्बर कंपनीज प्रोवाइडिंग दैट पर्टिकुलर एडवांटेज over here, ताकि आप वहां पे जा सके. और अकेडमी ऑल्सो provide excellent placement opportunities, boosting high placement compared to others IT. Obviously हम यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं है कि बस आपको पढ़ाना है हो गया. We also provide you other let's say information also, जैसे कैसे आप HR
राउंड कैसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे कुछ हमने मेंशन किया है फीचर्स वगैरह, जैसे मास्टरिंग एचआर राउंड है जहाँ पे आप नेगोशिएशन बात कर सकते, नेगोशिएट कर सकते हो क्लाइंट को, अंडरस्टैंडिंग हाउ द सिनेरियोज आर देयर, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस हम आपको कैसे सामने वाले से डिस्कस करना है वो भी आपको अपडेट करते हैं। ओके, सो देयर आर दिस ऑल लेट्स से डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स दैट वी विल ऑफर। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बेसिकली ये है कि आप कोई भी डिवाइस से इसे एक्सेस कर सकते हो, आप मोबाइल लैपटॉप कहीं से भी और कहीं पे भी कर सकते हो। फिर भी मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा, ऑल्दो यू हैव दिस ऑप्शन, बट वन रिकमेंडेशन इज देयर दैट व्हेनेवर यू आर ज्वाइनिंग आवर सेशन मेक श्योर आप आपके लैपटॉप, लैपटॉप नहीं कहूंगा बेसिकली डिवाइस ऐसा लिख देता हूँ, आप आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट रहना कभी भी। इनिशियल के लेट्स से 2 या 3 लेक्चर्स ठीक है, समझ सकते हैं कि आप थियोरेटिकल पार्ट की बेसिस में हो इसलिए बोल रहे हो, बट अगेन कभी भी ध्यान रखना व्हेनेवर यू आर ज्वाइनिंग टू योर सेशन मेक श्योर यू हैव योर डिवाइस विद यू। इसका एडवांटेज क्या है, आप पैरेलल जो वर्कआउट है साथ में कर सकते हो, जो मैं कर रहा हूँ आप भी करो। अगर कुछ सेम वाइल वर्किंग ऑन दैट इफ यू हैव एनी एरर्स, कुछ प्रॉब्लम आता है तो हम उसी समय उसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, फॉर दैट पर्पस। अदरवाइज क्या होगा, वो एरर आपको आएगा बाद में कभी जाके, तो क्या होगा कि शायद आपको फिर से वीडियो देखना होगा, फिर से रिव्यू करना होगा ना, उसमें टाइम ज्यादा जाएगा। सो ट्राई टू डू दैट, इफ नॉट ऑब्वियसली उसका भी एक एडवांटेज है आपके पास में रिकॉर्डिंग्स रहेगा। ऐसे नहीं है कि अगर किसी सिनेरियो बेसिस में किसी कंडीशन वगैरह आपके पास लेट से पॉसिबल ही नहीं हुआ ओके आपको देखने के लिए वीडियो या फिर लाइव सेशन ज्वाइन होने के लिए, ऑब्वियसली देयर नॉट बी एनी प्रॉब्लम। आपके पास में देखो हमेशा रिकॉर्डिंग्स रहेंगे। रिकॉर्डिंग्स के लिए आपको आपके मेल आईडी पे, जो रिप्रेजेंटेटिव आपका मेल आईडी है जो आपने दिया हुआ है, उस आईडी पे आपको आपको आपका रिकॉर्डिंग सेशन का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जो आप कभी भी एक्सेस करके देख सकते हो। ओके, ये यहाँ पे ओके। देन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस, अभी जो अब देखो लाइव प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं ना, लाइव प्रोजेक्ट्स आर द प्रोजेक्ट्स विच आर ट्रेंडिंग नाउ, ऑन विच इंडस्ट्री इज वर्किंग नाउ। ओके, जो इंडस्ट्री अभी फोकस पे करे, जो वहां पे अभी फोकस करके वर्कआउट करे, इंडस्ट्री जिस पे वर्कआउट कर रही है कि कैसे हम उन चीजों को एडवांस कर सके, तो उसे कहते हैं लाइव प्रोजेक्ट्स। ओके, आपको उस प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करने को मिलता है यहाँ पे, यस वी डू। आपको पता ना हो शायद, पर हम फूड इंडस्ट्री में भी उसमें के डिटेल्स भी ले रहे हैं हमने, हेल्थ का भी हमारे पास में है, लॉजिस्टिक का भी एक सेकेंड, लॉजिस्टिक का भी हमारे पास में है। ओके, देन यस मार्केट, मार्केट का भी आपके पास में, जैसे सेल्स है, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में वी हैव, ऐसे बहुत सारे एक्सेट्रा लॉट्स ऑफ वी हैव ऑल। जैसे चर्न कंपनी, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में लोग चर्न कर दे तो उसका रीजन क्या है फाइंड आउट करना है, बैंकिंग का है, फाइनेंस का, वी हैव लॉट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। सो वी प्रोवाइड दोज पर्टिकुलर थिंग्स that will give an impactful performance, or let's say that will give a last long impact on your resume. That person who is reading, or that person who is having that resume in front of us, or that in front of that, will have surely be thinking that you should be called out. Okay, इस तरह का opportunity रहेगा। Then क्वेश्चन है ऑब्वियसली, जो भी आपके क्वेरीज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, हम क्या करते हैं कि आपको एक मेंटर अपॉइंट करते हैं। हमारे साथ में क्या होता है, जैसे मैं अभी लेक्चर जो आपको दे रहा हूँ, जो आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं तो हो ही हूँ, साथ में आपको एक सेपरेट मेंटर भी प्रोवाइड करते हैं। अगेन इट्स नॉट लाइक लेट्स से रेगुलर बेसिस पे, बट आपका एक मेंटर होता है जो आपको हमेशा हेल्प करता रहेगा प्रोजेक्ट में, देखो या फिर कोई क्वेरीज होते हैं, वो नहीं है तो मैं मतलब कोई ना कोई तो रहेगा ही रहेगा। सो ऑलवेज यू विल हैव वन मेंटरिंग पर्सन दैट विल हेल्प यू अलॉन्ग योर एरर्स, योर प्रॉब्लम्स एंड योर इश्यूज। ओके, ऑब्वियसली आपको कभी भी किसी भी इश्यू को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपको खुद का स्टडी करना है। Self study is the most predominant step which is required to get help from your mentor। इसका मीनिंग क्या है, सिंपल सा है, जो भी प्रॉब्लम्स आपको आता है पहले हम पूछेंगे कि आपने क्या एफर्ट्स लिए, आपने क्या किया। ओके, क्योंकि आपके एफर्ट्स भी दिखनी चाहिए। सिर्फ चीजें जैसे फॉर एग्जांपल पकड़ लो, आपको कोई फाइल इंपोर्ट करना है, नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि एरर की वजह से, बट आपने ट्राई ही नहीं किया, आप हमसे कराना चाहते हो तो वो नहीं होगा। ओके, दैट इज द सिंपल थिंग। देन यहाँ पे बाई वीकली मॉक इंटरव्यूज रखा है, बट नॉट ओनली विद दैट, जो प्रिपेयर कर चुके हैं तो हम लेट्स से डेली, अच्छा ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, मॉक इंटरव्यूज कब अटेंड होते हैं। ओके, रिमेंबर दैट whenever we will complete our training, or let's say whenever we will complete our session, and that session would make up to 45 days, it may consist of project also within that. Once you complete that, and after that, when you submit, your first project, when you submit your first project, and after doing all this with assignments, submitted, then you will be eligible for the mock interview.
क्योंकि इसके अलावा आप आगे देखोगे मुझे मॉक देना है मैं करूंगा, सॉरी, आप लिटरली किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस यू नो पावर बीआई इन एंड आउट एवरीथिंग। आप जरूर आ सकते हैं, बट अगेन इफ यू आर लर्निंग पावर बीआई नाउ एंड इफ यू आर थिंकिंग दैट मैं डायरेक्टली मॉक दे दूंगा, डोंट डू दैट। असाइनमेंट्स करने हैं, 45 डेज का पूरा सेशन कंप्लीट करना है जिसमें आपको प्रोजेक्ट वगैरह अलोकेट करके दिए जाएंगे, वो सबमिट करना है प्रोजेक्ट, और फिर बाद में ही यहाँ पे मॉक के लिए आना है। ओके, मॉक में भी 3 राउंड्स होते हैं, देयर आर 3 राउंड्स। ओके, 3 राउंड्स में क्या होता है, फर्स्ट जो राउंड होता है वो होता है वेरी बेसिक, जहां पे ये देखा जाता है कि आपको जो सिखाया गया है क्या आपको आता है क्या, हैव यू एटलीस्ट अर्न दैट, हैव यू एटलीस्ट लर्नड दैट एंड आर यू एबल टू अप्लाई दैट। सेकेंड होता है जो रिक्वायरमेंट है, जो एज एन रिक्वायरमेंट चाहिए होता है एज एन बीआई टूल, जो आपको रिक्वायरमेंट होता है कि आपको जो आता है पावर बीआई, तो उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आप वो फुलफिल कर पाते हो क्या। थर्ड होता है जहां पे आप पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा का पूरा डिटेल विथ ऑल टेक्निकल टेक्निकल टर्म्स एंड डैक्स क्वेरीज, और जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं जो हमें लगता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को एज अ डेवलपर बोलो या एज अ कंसल्टेंट, एज अ डेवलपर और एज अ कंसल्टेंट आपको आता है, ये हम चेक करेंगे। इफ यू आर एलिजिबल, यस, थर्ड राउंड आपका फिर होता है। नाउ बेस्ड ऑन दैट, फर्स्ट राउंड जो क्लियर करेगा उसको बेसिकली 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ज्यादा नहीं होगा, 1 ईयर तक, जैसे बेसिकली पकड़ लो कि अभी उन्होंने स्टार्ट किया। सेकेंड राउंड अगर प्रॉपरली करता है तो आगे जाके फिर आपको, हाँ भाई 2 साल तक चलो आपको ईयर वहां पे है। थर्ड करता है तो 3 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे है, इस तरह का ये इस्टेब्लिश किया गया। ओके, तो मेक श्योर कि इसे आप फॉलो जरूर करें। देन ऑब्वियसली जैसे आप ये बताएं, सिंस यू हैव दैट प्लेसमेंट ड्राइव्स, तो आपको क्या होगा, हर एक इंटरव्यू में कुछ ना कुछ नया सीखने को, कुछ ना कुछ अपडेट करने को मिलेगा। सो विल हैव अनमैच्ड अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारे हैं, बहुत सारी जगह, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है जो मिले, आपको वो जरूर देखने को मिलेगा। एंड व्हाइल डूइंग दैट, पर्सनलाइज अटेंशन फॉर स्मॉल ट्रेनिंग बैचेस ऑब्वियसली होगा, ऑनगोइंग सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, ये सब चीज आपको मिलेंगी। ओके, नाउ क्वेश्चन होगा आपका कि ये कितना ड्यूरेशन, जैसे मैंने आपको कहा ड्यूरेशन विल बी अगेन 45 days। With that, you will have 3 mock stages. Let them like this. 3 mock stages. You will get 3 projects. Each of you will get 3 projects. Okay, 3 projects होंगे तो आपको 3 project complete करने होंगे. With each 3 projects, okay, someone is trying to mute me. I think make sure कि आप जो बटन वहां पे क्लिक कर रहे हो, do not click on that mute option. Okay, please make sure. Otherwise क्या होगा? Okay, can anybody confirm who is actually muting me? गाइस, गलती एक बार हो सकती है, बार बार उस बटन को क्लिक मत करो। ओके, अगर आपको यहाँ सेशन पे नहीं है बैठना, यू कैन लीव। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई किसी ने जबरदस्ती नहीं रखा है। ओके, बट डोंट डू दिस मिशीफ थिंग्स। ओके, सो 3 प्रोजेक्ट्स है, और उसके बाद में है अगेन, ये जो 3 प्रोजेक्ट्स होने के बाद में जब आप मॉक जैसे दे देते हो, वहां से आपका सीवी बिल्टअप होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सीवी बिल्टअप होना स्टार्ट होता है, जहां पे आपको प्लेसमेंट्स के लिए कॉल, प्लेसमेंट्स के लिए आपके रिज्यूमे फॉरवर्ड करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, दिस इज हाउ इट विल वर्क नाउ। Okay, till now, any queries, any questions regarding that what I have stated till now? यस सर, हेलो, हाँ, एक्सक्यूज मी। बोलिए। सर बोल रहे थे कोई 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद, मतलब 45 डेज के बाद वो प्रोजेक्ट होगा ना? नहीं, आपको 45 डेज के अंदर ही प्रोजेक्ट मिल जाएगा। यू विल गेट अराउंड 30 डेज में आपका सेशन हो जाता है। ओके, और उसमें और प्रोबेबली आपको सर प्रोजेक्ट भी दे दिया जाता है। ओके, प्रोजेक्ट का भी। और सर वो इस पर इंटरव्यू क्या है, अनलिमिटेड इंटरव्यू क्या है सर? वो मतलब पूछना चाह रहे हैं। किसका?
इंटरव्यू उसके बाद जो होगा, मॉक हाँ इंटरव्यू हाँ के बाद जो फाइनल जो राउंड सिलेक्शन का जो होगा, जैसे किसी कंपनी में, हाँ। वो उसमें कितने इंटरव्यू आप कराएंगे? मॉक इंटरव्यू आप देखो, जब तक आप एलिजिबल नहीं होते तो चलता रहेगा। ओके, इट विल बी गोइंग ऑन प्रोसेस। नहीं, उसके बाद मॉक इंटरव्यू के बाद जैसे फाइनल इंटरव्यू जो होता है कंपनी में प्लेसमेंट्स के लिए, हाँ, वो तो प्लेसमेंट का वो ना। मतलब यस यस, प्लेसमेंट का जी आपको अभी जो चैतन्य सर है प्लेसमेंट का वो बताएंगे। ओके, वो आपको सब ठीक है। और डिटेल्स क्लासेस मेरे जाने के बाद बता देंगे। क्लासेस में भी हिंदी मतलब मिक्स इंग्लिश, और मतलब वो प्योर प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज? या पार्डन मी, व्हाट अगेन? क्लासेस विल बी मतलब मिक्स लैंग्वेज इंग्लिश या प्रॉपरली इंग्लिश लैंग्वेज क्लासेस? बोथ बोथ, हिंदी इंग्लिश बोथ। मराठी नहीं करेंगे, मराठी विल नॉट बी यूज बिकॉज बहुत लोगों को शायद हिंदी मतलब मराठी समझ में नहीं आएगी, तो उतना नहीं कहेंगे। बट यस, हिंदी इंग्लिश बोथ वुड बी देयर। ओके। सर हमें रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाएगा क्या? यस यस, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। डेली बेसिस पे मिल जाएगा क्या, वो कैसा? डेली बेसिस में हो जाता है, सेशन खत्म होने के बाद में वो रिकॉर्ड हो जाता है। यू विल गेट दैट पर्टिकुलर इन डेली बेसिस। मैक्स टू मैक्स देखो, कभी भी कभी टेक्निकल टर्म्स होते हैं तो शायद 24 आवर्स का होगा, बट अगेन हो जाता है, इट इज अवेलेबल। तो क्या मुझे और एक तो क्वेश्चन था। क्लासेस सर अब जो डेली बेसिस पे सेशन में, होंगे पर डे? वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन। सर क्लासेस हेलो, डेली बेसिस पे होंगे, मतलब कि टाइमिंग और उसकी टाइमिंग क्या रहेगी सर? हाँ बताता हूँ। ओके, फॉर सेशन टाइमिंग्स एंड सेशन वर्क, लेट्स से वीक डेज। ओके, आपका वीक डेज रहेगा। वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे जो है, मंडे टू फ्राइडे का डिटेल्स रहेगा हमारा। अब हर रोज 7:30 से लेके मैक्स टू मैक्स 9 PM तक जाएगा, मैक्स टू मैक्स 9 PM। ओके, ये आपका टाइमिंग रहेगा वीकडेज मंडे टू फ्राइडे, इतना। इज इट क्लियर? यस, ओके सर। What syllabus is covered? या सिलेबस के बारे में आपको बताता हूँ, टॉपिक्स के बारे में। बोलिए बोलिए। ओके ओके, नाउ व्हाट इज पावर बीआई? पावर बीआई जैसे सबको पता है, ऑब्वियसली सब लोग ने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं रिसर्च करके ही आए होंगे। तो बेसिकली पावर बीआई इज एन इंटरैक्टिव डेटा विजुअल सॉफ्टवेयर। ओके, व्हाट डज इट मींस? इसका मीनिंग क्या है मैं आपको बताता हूँ। What will the batches sizes? Hello, sir, am I audible? You are mute. या बोलिए। Sir, batches का size क्या होंगे? एनी कुछ चेंज होगा बैचेस के साइज से? आई डिडंट गेट इट, मतलब बैचेस के साइज पे आई डिडंट गेट इट, व्हाट क्वेश्चन इज दैट? How many like student will be there in a batch, like 7 to 9? ओके, व्हाट डज दैट इफेक्ट? आई डिडंट गेट इट, मतलब बेसिकली उसमें क्या है, मतलब से डिफरेंस क्या होगा? Means like the people रहते like doubt पूछने में mostly मेरे ख्याल से time निकल जाता है, and also that's why I ask. नहीं, इट्स ओके। जितने भी है सबको देखो डाउट्स होते होंगे, डाउट सेशन के लिए सेशन के बाद में आप, मैं वेट करता ही हूँ, सो आई विल बी देयर। और इवन सैटरडे संडे भी है, या फिर सेशन के बाद में दोपहर है, कल सुबह, मतलब फॉर एग्जांपल पकड़ लो कि 7:30 से लेकर 9:30 तक हमारा बैच है आज का, कल सुबह भी है, आई विल बी अवेलेबल देयर। ओके, यू कैन ज्वाइन मी ऑल्सो। एक रिक्वेस्ट है बाकियों से, प्लीज ओके मेक श्योर कि जो बैकग्राउंड नॉइज है ना थोड़ा सा देख के कीजिए, क्योंकि बाकियों को प्रॉब्लम ना। ओके, हाँ बोलिए। Hello, sir. हेलो हम्म, सर, मेरा एक Sir, क्वेश्चन है। is SQL is covered along with this? एसक्यूएल कवर्ड नहीं है। ओके, इट्स लेट्स से कि मैं आपको बता दूं कि एसक्यूएल के आपको नॉलेज कैसे यूज करना है, क्वेरी कैसे लिखना है वो बताएगा, लेकिन एसक्यूएल में पूरा एसक्यूएल कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, सर आप पाइथन भी कवर करने SQL, वाले थे? यस। Sir, हेलो बोलिए। सर, आप पाइथन भी कवर करने वाले थे इसमें? नहीं नहीं, पाइथन कवर नहीं करने वाले हैं, पाइथन को यूज कैसे करते हैं जैसे मैं आपको बताता हूँ। ओके, पाइथन
हम इंटरेक्ट मतलब कनेक्ट कर सकते हैं बीआई टूल जो पावर बीआई के टूल्स है। लेकिन होता क्या है, इस Okay. बीआई टूल को यूज करने के लिए इसमें कुछ ना इनपुट देना पड़ता है पाइथन में। तो वो कैसे यूज करते हैं, यस आई शो दैट, बट पूरा पाइथन पढ़ाना इट्स नॉट पॉसिबल इन दैट शॉर्ट ऑफ टाइम। माइस्क्ल भी मैं पढ़ाऊंगा, कैसे क्वेरी लिखना है, क्या क्वेरी लिखना पड़ता है, और पाइथन का भी सिखाऊंगा, बट ओवरऑल पूरा का पूरा पॉसिबल नहीं है। ओके एंड सर 45 डेज में ही आप सब कवर करने वाले का 45 डेज के बाद प्रोजेक्ट होने वाला है आपका? नहीं 45 डेज में जो भी डिटेल्स है आपके, जो भी है कंसर्न, ये हो जाएंगे क्लियर। ओके Hello, sir. I am having 8 years of experience. So, how much experience shall I show? okay what exactly and where exactly you have 8 years of experience, in which field particularly? 3 years into manufacturing sector and five years into corporate world. Okay, what role actually you were doing there? So, I am doing their SMT programming engineer. Programming, which programming? SMT. SMD. Okay. Yeah. Now it would be a different scenario. Let's say it would be a different field with respect to data analytics and BI, isn't it? Okay. Yeah. What we will do is that we'll try to, let's say, incorporate some of their information. Let's say, because hota kya hai na kahi, although we have not directly related to that particular field, what we will do, we'll try to use or utilize some of that information that yes, you were somehow related to analytical field also, and then we will look out. Okay. Yeah. So, Okay. 3 year we can show, right? That depends on if how you are cracking your mocks. Okay, how you are let's say giving the results in mock, and then we will decide it. Okay. Thank you. Thank you. सर सर बोलिए ना। ओनली पावर बीआई करके जॉब मिल सकता है क्या? क्या ये पाइथन और एक एडवांस एक्सेल भी सीखना पड़े? देखो सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई पे जॉब लगता है क्या, इसके लिए अगर आपने जरूर ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे जितने भी लोग आए ऑब्वियसली थोड़ा उन लोगों ने रिसर्च तो किया होगा और आपने भी किया होगा, जिसमें पता चला होगा कि देर आर लॉट्स ऑफ प्लेसेस अवेलेबल फॉर पावर बीआई ओनली। पावर बीआई कंसल्टेंट है, पावर बीआई असिस्ट जिसे कहते हैं कि पावर बीआई असिस्टेंट्स करके है, बहुत सारे डायरेक्टली भी होता है। बट सिर्फ पावर बीआई के बेसिस में होता है क्या, यस ऑब्वियसली जैसे आपने कहा थोड़ा सा नॉलेज ऑफ माइस्क्ल, जैसे हमने कहा है कि मैं आपको एड ऑन करूंगा, थोड़ा सा ऑफ पाइथन करोगे, आपको आप जो सिखाऊंगा मैं आप करोगे, तो आपको एड ऑन डिटेल्स इन दो चीजों में भी आ जाएगा। ओके तो आपको क्या होगा, प्रोफाइल में ये दो चीजें ऐड ऑन करके दिखेंगी जो आपको अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगी। ओके हाँ, रही बात बाकियों की, तो थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है, वो आप करोगे तो ये हो जाएगा। सिर्फ पावर बीआई के बेसिस में भी लग जाता है, बिकॉज पावर बीआई ऐसा नहीं है कि पावर बीआई टूल सिर्फ विजुअल करता है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स व्हाट इट कैन डू आल्सो। ओके सर टैब्लू भी कवर्ड है Okay. क्या? नहीं टैब्लू नहीं है, एक ही विजुअलाइजेशन कर रहे हैं अभी पावर बीआई। या बोलिए। हेलो सर हाँ बोलिए। हेलो सर जावा का भी एक्सपीरियंस काउंट होता है इसमें? हाँ कर सकते हैं ना, जावा का भी एक्सपीरियंस। देखो किसी का भी क्योंकि- एक्सपीरियंस काउंट होने के लिए देखो आपका, जैसे अभी ये टूल क्या है, ये बीआई का टूल है। बीआई टूल मतलब क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, जहाँ पे आप एनालिसिस हाँ, करके करते हो ना। अगर आप Data. किसी भी तरह से इसके पहले आप अगर आपने एनालिसिस का काम किया है तो उसे रेलेवेंट ला सकते हैं ना, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन डू दैट। जैसे मैंने जावा के साथ साथ में एसक्यूएल पे भी काम किया है। हाँ तो बस एडवांटेजेस है, इट्स वेरी गुड। देन आप बोलिए क्या सकते हो, वी कैन ऐड दैट। वर्क बेंच और पोस्ट बेस में। यस दैट्स एडवांटेजेस पार्ट। सर मैं ये रेगुलर लेक्चर कब से चालू होने वाले? रेज्यूमे आपका मॉक हो जाएगा ना कंप्लीट। रेगुलर हाँ मॉक कंप्लीट होने के बाद में उसके बेसिस में, क्योंकि कितने लेवल के आप मॉक्स क्लियर करते हो उसके बेसिस में आपका रेज्यूमे में एक्सपीरियंस ऐड होते जाएगा। ओके ठीक है। And what about व्हाट अबाउट हेलो सर freshers? फ्रेशर्स? यस फ्रेशर्स आल्सो हैव, बट देयर। हाँ बोलिए। सर जी मेरे को ना पेरोल में एक्सपीरियंस है, पावर बीआई में एक्सपीरियंस नहीं है। किसमें है आपको पेरोल में एक्सपीरियंस है सर। किसमें है? हाँ सर बोलिए ना। आपका आवाज ना ब्रेक हो रहा है धर्म महाराज। ओके हाँ, जो नए बोले थे अभी फ्रेशर्स के बारे में, इवन फ्रेशर्स सर, को है मैं उनको भी ट्रेनिंग में अपॉर्चुनिटीज है, travel कर ऐसे ही है कि नहीं है, वी हैव दैट अपॉर्चुनिटी आल्सो, वी कैन एक्सप्लोर दैट आल्सो। ओके सो डोंट वरी अबाउट दैट। क्या धर्मराज? फ्रेशर्स के रोल क्या क्या होते हैं सर?
पावर बीआई असिस्टेंट एसोसिएट्स करके आते हैं, उसमें आते हैं आपका। तो रेगुलर हाँ, है। बैचेस कब से चालू होगा? रेगुलर कल से हो जाएगा। आपको रजिस्टर करना है कल तक, आज कल 2 दिन है आपका, अभी और कल का दिन का रजिस्टर कर लीजिए एंड देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो ओनली। कल से स्टार्ट कर देना। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या है सर? आपको वो अभी जो प्लेसमेंट वाले हैं ना हमारे चेतन सर, वो आपको बता देंगे उसके लिए। ओके ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा आपके जो क्वेश्चंस Actually, I have अभी the one question regarding of the training. yeah 1 second guys, try to hold on your questions for a minute. Let me give you the demo for this, okay, and then we will continue that. Okay, questions, क्योंकि क्या पता शायद run on this particular slides जो भी आएंगे उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। okay, so let me get through that also. okay, मैं पावर बीआई के यहाँ पे क्यों आया आपको ये दिखाने के लिए। okay, somewhat it will look like this, and with that ये जो मैं लेके आया था आपको। ओके ये इंटरैक्टिव डैशबोर्ड हम कहते हैं ना, इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन। व्हाई डू वी से दैट? लेट मी शो यू। देखो आप कोई भी एक पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन पे आइए, फॉर एग्जांपल लेट्स से गेट इट ओवर हियर। ओके सी इफ यू क्रिएट लेट्स से एनी ऑफ दिस डेटा, ओके जो भी आप विजुअलाइजेशंस क्रिएट करते हो, जिस तरह से भी आप वर्कआउट करते हो, होता क्या है कि ना हम हमारे चार्ट्स के साथ में, हमारे जो विजुअल्स है इसके साथ में हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। इंटरैक्ट मतलब क्या आप कहोगे हम बातचीत कर सकते हैं, नॉट इन दैट सेंस, बट आपके क्वेरीज अगर कुछ है तो उसे आप जरूर रिजॉल्व कर सकते हो। ओके कैसे? लेट मी शो यू। जैसे मैं क्या करूंगा, एक स्लाइसर ऐड कर दूंगा, ये सब हम करने वाले हैं। सो लेट मी जस्ट शो यू वन ग्लिम्स ऑफ दैट डिटेल्स। लेट्स से इफ आई ऐड वन स्लाइसर ओवर हियर, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्लाइसर ऐड किया यहाँ पे ओवर हियर, यहाँ पे एक स्लाइसर लगा दिया, यहाँ पे आ गया। अब इस स्लाइसर को क्या करूंगा, मैं कुछ चीजों से ना डिवाइड करूंगा, ब्रेक करूंगा। कैसे करना है वो भी हम बताएंगे आपको, डोंट वरी अबाउट इट। कैटेगरी डालिए। देखो आपके जो ये शीट है, ये जो मैप है, नहीं यूएस का जो मैप है, देखो यहाँ पे ना कुछ चीज आपको हाईलाइट हो रही है। देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो जैसे क्लिक करता हूँ टेक्नोलॉजी पे, तो देखो जहां जहां पे भी टेक्नोलॉजी डोमिनेंट है, जहां जहां पे भी टेक्नोलॉजी डोमिनेंट है ना सेल्स का, वो दिखाता है। इंटरेक्ट कर रहा है मैप, क्या कर रहा है मेरे साथ, इंटरेक्ट कर रहा है। मेरा रिक्वायरमेंट फर्नीचर कहाँ पे ज्यादा सेल हो रहा है वो बताओ। देखो फर्नीचर के डिटेल्स आ जाएंगे आपके सामने मैप पे भी। ओके देखो अपने आप वहां पे भी आ रहा है। तो ये चीजें क्या है, ये इंटरेक्टिव होते हैं। इंटरेक्टिव इसी को कहते हैं, आप आपकी क्वेरीज को यहाँ पे पुट करते हो और आपके विजुअलाइजेशन, आपके जो चार्ट्स है, जो टेबल्स है, आपको इंटरेक्ट करके आंसर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरेक्टिव। ये चीज अगर पीडीएफ फॉर्मेट में होगा तो क्या होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो है वैसा है, वी हैव टू एक्सेप्ट इन दैट मैनर ओनली। ओके सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट एन इंटरेक्टिव। दैट इज दिस सॉफ्टवेयर पावर बेस्ड interactive software. So for reference of a syllabus, again it's very difficult to let's say import all the syllabus and maintain all the pinpoint details over here. So I have just taken an overall glance that what are the major things that we are going to cover over here for a syllabus purpose. So just look it over here. Introduction of Power BI. Obviously whatever theoretical part is required to understand how Power BI works and what are the mechanics behind that Power BI will be covered with architecture and all those details. And ETL is a process that particular you might have heard already. ETL is a process which is being, let's say, followed by this Power BI, where we extract the data, we transform, we clean the data, and we load the data for your visualizations. That is over here. Transformation is the thing that we are talking over with the middle T over here. So we are going to import the data, we are going to basically transform the data, we will be cleaning the data, and all those will be concept will be cleared over here. Then visualization with the L part. Okay, to create charts, to create reports, to create dashboards will be there. Within that, it's not necessary that every visuals will have be following on one principle. It may have a combination of DAX and without DAX. What exactly is that? DAX? DAX is a combination of different functions. When you incorporate, okay, when you incorporate in your data, you will get lots of new insights. Okay, so DAX. ये है आपका, ये क्या है हम इस पे बहुत अच्छे से डिस्कस करें। we'll have lots of examples over there. So introduction of DAX. डिफरेंट चार्ट्स पे हम काम करेंगे, बहुत सारे हैं, पाई चार्ट है, डोनट चार्ट है, ट्री चार्ट है, ऐसे बहुत सारे।
देन इंटीग्रेशन ऑफ एनालिटिक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एनालिटिक्स में क्या है, आप पाइथन के साथ में भी इंटीग्रेट कर सकते हो, आर के साथ में भी करते हो। यहाँ पे माइसिक्वल नहीं लिखा है, वी कैन डू विद डेटाबेसेस आल्सो, माइसिक्वल, सेल्सफोर्स वगैरह, ऐसे उसके अलग अलग के साथ में इसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको पावर बीआई वेब ऑनलाइन वर्क करना पड़ता है। ओके, ऑनलाइन उसे कैसे हैंडल करना है, कैसे लिंक करना है ऑनलाइन पे, कैसे आपको पब्लिश करना है, वहां पे कैसे काम करते हैं, यस वो भी आपका क्लियर होगा यहाँ पे। देन एडिशनल फीचर्स लाइक एआई बेस्ड जो Q&A है, जहाँ पे NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, ये वर्क होता है, हम उस पर भी वर्कआउट करेंगे एआई बेस पे। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी के लिए RLS करके होता है एक टॉपिक, वो भी हम कवर करेंगे। देन आपको जैसे मैंने कहा था कि डैशबोर्ड का जो है, ओके, लॉग इन करना पड़ता है आपको। लॉग इन करने के लिए लॉग इन पावर बीआई डेस्कटॉप जो फ्री है उसको लॉग इन कैसे करना है, बिकॉज इट टेक्स लॉग इन और लेट्स से एड्रेस ऑफ योर ईमेल आईडी विच इज स्पेसिफिक डोमेन, लेट्स से कंपनी बेस्ड आईडी ओनली, बट हम वो कैसे करते हैं, विल डू दैट ऑल्सो, आपको फ्री में भी करके मिल जाएगा। अगेन उसके बाद में जब आप किसी भी डेटा को एक बार लोड करते हो सिस्टम में, तो उसको आपको, एक तो होता है मैनुअल रिफ्रेश, दूसरा होता है ऑटोमेटेड रिफ्रेश। ऑटोमेटेड रिफ्रेश कैसे करते हैं, उसे कहते हैं शेड्यूल रिफ्रेश, हम वो भी करते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ टॉपिक विच विल बी कवर्ड, नॉट ओवर हियर बट ओवरली, जैसे बुकमार्क्स है, बटन्स है, स्लाइसर्स के इफेक्ट्स है, बहुत सारी चीजें वी आर गोइंग टू डू लॉट्स ऑफ थिंग ओवर हियर। ओके, तो ये सब चीजें, उसमें से कुछ मेजर मेजर डिटेल्स यहाँ पे, क्योंकि देखो जो स्लाइसर्स है, फिल्टर्स है, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती है। दैट्स व्हाई इसको मैंने कुछ स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे फिल्टर स्लाइसर्स है, बहुत स्पेसिफिक नहीं बताया है, बट दोज आर कवर्ड ओवर हियर। सो these are going to be worked with this. Again, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको पावर बीआई सीखो, ओके, बाकी टूल्स नहीं है क्या, बाकी टूल्स भी है, ऐसे नहीं कि पावर बीआई ही एक है, टैब्लू है, क्विक है, देन ओरेकल, सैप, बहुत सारे हैं आपके पास में ऑप्शंस, बट व्हाई पावर बीआई? आप देखोगे तो पावर बीआई ना, अगेन फ्रॉम 2024 ओनली, अभी 2025 का क्वार्टर चल ही रहा है, बट 2024 का क्वार्टर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई इज ऑन अ लीड। कब से है? 2019 से चल रहा है, ऐसे नहीं कि आज की बात कर रहे हैं, 2019 से ये चल रहा है। Okay, and always a competitor with Tableau. It is always. अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई क्यों ऊपर है? उसका रीजन ये है क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जितने भी एशियन बोलो या फिर साउथ ईस्ट के, एशिया के रीजन में जितने भी देखोगे, तो माइक्रोसॉफ्ट ये जो प्रोडक्ट है ना, ऑफिस, MS ऑफिस करके, ये बहुत लोगों को यूजफुल है, और UI उसके क्या है, बहुत लोगों को यूजर है, यूजर फ्रेंडली लगता है। तो पावर बीआई ऐसे कुछ दिखता है, जैसे आपने अभी देखा होगा, देखो ये है ना पावर बीआई, आपने देखा, जैसे देखो इसका यूजर इंटरफेस देखो कितना सिमिलर है एक्सेल के साथ में, पावर पॉइंट के साथ में, है ना, बहुत सारी चीजें क्या है, बहुत सिमिलर है। इसी यूजर इंटरफेस, फ्रेंडली यूजर इंटरफेस कैसे, देखो यहाँ पे रिबन होता है, यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे आपके जितने भी टैब्स होते हैं, है ना, आप फंक्शन यूज कर सकते हो लाइक दैट। बिकॉज ऑफ दैट इट्स वेरी वाइडली यूज्ड इन इन आवर इंडस्ट्री, ओके, बेसिकली इन एशियन एरिया में देखोगे आप तो ऐसा। सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी मच पॉपुलर, और ऑब्वियसली यूजर फ्रेंडली, इजी है। टैब्लू के कंपेयर में करोगे तो आप देखोगे इट इज वेरी इजी। ओके, अगेन टैब्लू भी किया है मैंने, ऐसे नहीं किया, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू कंपेयर दैट, इट्स समहाउ थोड़ा सा इजी है, इट्स नॉट दैट मच हार्ड बट इजी है। एंड इवन कंपेयर अगर आप करते हो टैब्लू से, तो इसका एक्सेस, ओके, इट्स एक्सेस टू डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज आर मोर कंपेयर टू टैब्लू, इसके से यहाँ पे इसको ज्यादा यूज किया जाता है। नाउ व्हाई वी आर मूविंग ओवर, लेट्स से पावर बीआई क्या करके दिखा हमें, उसमें क्या एडवांटेजेस है हमारे फर्दर करियर के लिए। सो इफ यू लुक ओवर हियर, यू विल फाइंड दैट एवरीथिंग नियर टू यू और नियर बाय अस इज इवॉल्विंग टुवर्ड्स डेटा ओनली। हर चीज क्या कर रहा है यहाँ पे, डेटा डेटा डेटा, सिर्फ डेटा के ऊपर ही इवॉल्व हो रहा है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग इज अ डेटा सेंस ओनली। आप बैंकिंग सेक्टर में जाओ, आप किसी कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाओ, हेल्थ केयर में जाओ, फोरकास्टिंग में जाओ, मतलब कोई भी पर्टिकुलर सीजन बेस में जाओ, एजुकेशन में, कहीं पे भी जाओ आप, आजकल क्या हो गया है, सब जगह डेटा जनरेट हो रहा है, और उस डेटा के बेसिस में जो डेटा को अच्छा हैंडल करेगा, जो डेटा को अच्छे से समझ लेगा, यस ही इज, लेट्स से द इंपॉर्टेंट, और लेट्स से ही इज वेरी VIP, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन ओवर देयर। सो यस, वी आर गोइंग टू बी दैट पर्सन। हम स्टडी करेंगे डेटा को एंड वी विल एनालाइज दैट, ओके, एंड दैट इज मेजर रोल ऑफ अ BI पर्सन। ओके, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स? बेनिफिट्स क्या है, देखो, डेटा ड्रिवन डिसीजन सीखना कैसे कैसे करते हैं, आपको पता चल जाएगा। यूजर फ्रेंडली इंट्यूटिव इंटरफेस जो पावर बीआई, वो सीखोगे आप। सिमलेस इंटरेक्शन एक्सेल से, एजोर से, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स से आप सिमलेसली एक्ट कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। ओके, एबल टू हैंडल लार्ज डेटा। डेटा आपको लगेगा कितना डेटा, अप टू 1 GB डेटा हम आराम से हैंडल कर सकते हैं फ्री में,
ओके फ्री वाले वर्जन में नो प्रॉब्लम, इससे ज्यादा पेड में जाओगे तो 10 GB तक का भी है, बट एनी हाउ इट इज वेरी मच गुड फॉर अस, 1 GB तक का डेटा इतना आप हैंडल कर सकते हो। देन कोलैबोरेटिंग एंड शेयरिंग कैपेबिलिटीज, किसको शेयर करना है, कैसे करना है, रोल बेस में करना है, लॉट्स ऑफ थिंग वी कैन डू, दीज आर द बेनिफिट्स। नाउ ये हम क्यों सीखेंगे, देखो इसका रीजन है, आप जब जाओगे आपने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे indeedcareer.com करके ये एक है, आप ऐसे लिंक्डइन पे जाइए, आप नौकरी कहीं पे भी जाइए, आप जब जेडीज को देखोगे ना, जॉब डिस्क्रिप्शंस को, तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्किल्स है इसका बहुत डिमांड है, डेटा विजुअलाइजेशन का रिक्वायरमेंट है, मशीन लर्निंग का रिक्वायरमेंट है, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे जितने भी नाम है यहाँ पे सबकी रिक्वायरमेंट है। अब आपको लगेगा कि हम सब कवर करने वाले हैं, नॉट पॉसिबल है दैट, ऑब्वियसली आई नो दैट, बट कितने कवर करने वाले हैं ये देख लो। डेटा विजुअलाइजेशन आपको समझ में आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स यस यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स वी आर गोइंग टू डू लॉट्स ऑफ एग्रीगेटेड फंक्शंस वर्किंग ऑन इट, वी विल डू दैट। क्रिटिकल थिंकिंग समझ में आ जाएगा, एक्सेल ऑब्वियसली फंक्शन सीखोगे, एक्सेल का भी साथ में आपको नॉलेज आएगा, पाइथन इंटीग्रेट करके 100% नहीं, बट यस सम ऑफ पाइथन विल बी अंडरस्टैंड। मैनेजमेंट यस, मैनेजमेंट कैसे है, डेटा मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डेटा का आपको पता होगा, जैसे स्टार सीमा कैसे काम करता है, डेटा मैनेजमेंट, टेबल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, यस यू विल लर्न। डेटा क्लींजिंग ऑब्वियसली, अटेंशन टू डिटेल यस, किसी भी डोमेन का रिलेटेड है आपको डोमेन नॉलेज मिलेगा। अगेन आर इज एन ऑप्शनल विच इज नॉट रिक्वायर्ड, बट वी कैन डू दैट ऑल्सो। माई नो सीक्वल का कोई कंसर्न नहीं है, इंस्टेड ऑफ दैट वी हैव सीक्वल, सीक्वल में भी हम माई सीक्वल से डेटाबेस से कनेक्ट करके जरूर वर्कआउट करेंगे। डेटा माइनिंग, communication skill while communicating, how to communicate, how to share your thoughts, how to share your observations, conclusion कैसे करना है, यस सिखाया जाएगा। बिग डेटा का यहाँ पे कंसर्न नहीं, अपाचे हडूप कुछ नहीं है। डेटा एनालिसिस यस, इसका आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन सब दिया जाएगा। सो एटलीस्ट आप देखोगे तो अराउंड 80% ऑफ रिक्वायरमेंट यस वी आर फुलफिलिंग ओवर हियर। अब आप पे डिपेंड है कि आपको कितना डेप्थ में जाना है, इंट्रोडक्टरी करा के उसको नॉलेज देके हम तो दे ही रहे, ओके, बट you are the one who is going to decide how much in sense of how much depth you are going to get, you are the one who is going to decide, okay? So अपॉर्चुनिटीज कौन से हैं, क्या क्या है हमारे पास, देखो बहुत सारे डिफरेंट पोजीशंस है। आप डेटा एनालिटिक्स देखोगे, जितने भी अब यहाँ पे नाम देखो, हर एक जगह में ना पावर बीआई का रिक्वायरमेंट देखो, पावर बीआई बीआई ये रिक्वायरमेंट होता ही है, और बहुत सारे जगह पे डेटा एनालिटिक्स विजुअलाइज करके हमें दे सके, मिड स्केल में बोलो या फिर जो अभी स्टार्टअप कंपनीज है वहां पे बीआई का रिक्वायरमेंट ज्यादा है कंपेयर टू डेटा एनालिटिक्स, वहां पे बीआई को ज्यादा रिक्रूट किए जाते हैं। सो यस देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। कौन से इंडस्ट्रीज है, फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्नोलॉजी है, कंसल्टिंग है, फर्म और बहुत सारे मार्केटिंग है, बहुत सारे। आपको कौन सा डोमेन पसंद है आप वहां पे भी यूज कर सकते हो, आपका नॉलेज ऑलरेडी आप उसी में हो, यूटिलाइज करो, ओके, लेवल अप करो खुद को, यू कैन डू दैट, ओके। ना ऑन एन एवरेज सैलरी की जब बात आती है, ऑब्वियसली इसी के लिए तो हम यहाँ पे आए हैं, आप देखोगे ऑन एन एवरेज रेंज देखोगे जो डेटा एनालिटिक्स के लिए 3-5 सबका, यहाँ कहीं भी आप देखो, फ्रेशर्स के रिलेटेड बोल रहा हूँ, ओके, सैलरी बेस्ड ऑन दिस एंट्री लेवल फ्रेशर्स के बारे में बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज देखोगे तो सबका ना 5-4-5 की इसमें रेंज में मिलेगा आपको। वंस यू अंडरस्टैंड, वंस यू गेट द नॉलेज ऑफ पावर बीआई, यू कैन गेट अप टू 7 लाख और अप टू 12, हमने 12 लाख का भी पैकेज देखा, वी हैव गॉट, जैसे हमने ये भी देखा, मैंने देखा है वो कि 12 लाख पैकेज तक का भी लोगों को गया है, अगेन बेस्ड ऑन नॉलेज। अब आप बोलोगे सर ये 12 लाख कैसे अक्वायर होता है, फर्स्ट आप 5 लाख को देखो जहां पे आप एसोसिएट करके वर्क करते हो, एसोसिएट आपका पहला जो स्टार्ट होता है, बिकॉज यू विल हैव लेट्स से 1 or 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, यू विल कंसिडर दैट। आफ्टर दैट जैसे आप 3 years के अबव जाते हो तो यू विल कंसिडर एज अ कंसल्टेंट। फिर उसके बाद में आप जाते हो तो उसके बाद आता है डेवलपर के लिए अगेन यस 7 साल 8 साल 10 साल का एटलीस्ट होता है एक्सपीरियंस वहां पे, तब जाके इतना होता है। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, तो आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ना एक्सपीरियंस आपका, जैसे जैसे आपका अचीवमेंट एक्सपीरियंस आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, यू कैन हैव अ गुड हैंडफुल अमाउंट ऑफ नॉलेज एंड हैंडफुल अमाउंट ऑफ लेट्स से सैलरी ऑल्सो। तो फोकस करो अच्छे के लिए, ओके। कौन से कंपनीज है, अगेन कंपनी एक ही नहीं है, बहुत सारी कंपनीज हैं, और इंडिया में देखोगे तो इन्फोसिस है, कैपजेमिनी, विप्रो, ऐसे बहुत सारे नाम है, एन नंबर ऑफ लिस्ट, बहुत सारे लंबा चौड़ा लाइन है, ओके। उसके अलावा बाहर अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बाहर का ही फोकस करना है, देयर आर 153 कंट्रीज व्हिच आर वर्किंग ऑन दिस पावर बीआई, इसमें इतने सारे नाम है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये होता है कि सिर्फ पावर बीआई इतना हो जाएगा, दूसरा टूल को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा आप पावर बीआई सीखोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। कैसे? आप टैब्लू को भी सीख सकते हो। इसका रीजन क्या है, सीख सकते हैं मतलब क्या है, क्या सेम है? नहीं, आई एम नॉट सेइंग सेम। देखो किसी भी एनालिसिस करते समय किसी भी चीज का जब आपको एक बार लॉजिक समझ में आता है ना, देखो ये मैंने चार्ट बनाया, ये लाइन चार्ट है, अब इस चार्ट का एनालिसिस आप करोगे
तो आप इसे टैब्लू में क्रिएट करो या पावर बीआई में क्रिएट करो, इसका लॉजिक, इसका एनालिसिस का जो डिटेल्स है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन कोई एक्सट्रैक्ट कर सकता है, कोई भी बंदा वो सेम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा क्योंकि ये सेम है। ग्राफ तो चेंज नहीं होगा टूल चेंज होने से, वो आप टैब्लू सीखो पावर बीआई सीखो, इजंट इट? हाँ, क्या होता है चेंज? यूआई, यूजर इंटरफेस चेंज होता है, उसके इनपुट देने का तरीका चेंज होता है। सो ऑब्वियसली अगर आप पावर बीआई अच्छे हैंड ऑन प्रैक्टिस करोगे तो कल जाके किसी को लगता है कि टैब्लू उसे आना चाहिए, तो आप टैब्लू के प्रिंसिपल्स, टैब्लू के नॉलेज और टैब्लू के यूआई समझ के बाकी का चीज वही फॉलो करना है, वो भी यूज कर सकते हो। सो पावर बीआई नॉट ओनली लर्निंग दिस बट इट विल हैव आल्सो इम्पैक्ट ऑन अदर टूल्स आल्सो। ओके, नाउ this was all about Power BI demo that I was let's say thinking about to give you. If there's any query still which has not been let's say attained, please speak it out. Yeah, hi. Actually, I have Yeah. the query. Hmm. Out of this syllabus, anything is required from my side to learn for grow the profiles? ओके, जैसे पावर बीआई के अलावा अगर आपको लगता है कि आप माई सिक्वेल की अगर थोड़ा पहले आपके पास में नॉलेज है, अगर ऑलरेडी है, आप उसी बैकग्राउंड से आते हो, फिर कहीं से कॉन्जिक्यूटिवली आते हो, तो यस गो फॉर दैट अगर आपको करना है तो। अच्छा, होता क्या है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, पावर बीआई सीखने के बाद में ना हमेशा सोचते हैं कि पावर बीआई सिर्फ क्या है, विजुअलाइजेशन टूल है, उतना ही करना है। ऐसा नहीं है। पावर बीआई टूल इज ऑल्सो यूज्ड टू लेट्स से डेटा मैनेजमेंट होता है ना, जैसे माइस्क्ल काम करता है, वैसे भी ना आप डेटा को डिफरेंट डिफरेंट, जैसे एक टेबल है उसको, डेटा को आप सेपरेट सेपरेट से ब्रेक कर सकते हो, वन डायमेंशन डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल की बेसिस में ब्रेक करके देख सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, डेटा का फ्लो, डेटा का ऑप्टिमाइजेशन, वो भी आप यूज कर सकते हो। अगेन, अगर ये नहीं है, आपको लगता है कि पावर बीआई में ही आगे करना है विदाउट एनी टूल्स, तो आप टेम्पलेट्स, ओके, पावर बीआई में जैसे आपने देखा होगा रेज्यूमे टेम्पलेट्स होता है, बहुत सारे कोई जो कंपनी होती है इनवॉइसेस के टेम्पलेट्स होते हैं, तो आप वैसे ना आपके टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, टेम्पलेट्स बना के भी दे सकते हो। सो सिर्फ पावर बीआई की अगर बात करते हो तो, अदर देन दैट अगर आपको टूल लगता है मुझे कुछ करना है, तो ये ऑब्वियसली माइस्क्ल और पाइथन पे फोकस करो, क्योंकि पावर बीआई बीआई बनने के बाद में हो सकता है शायद आपका माइंड टेंड करे कि आप एनालिस्ट बनना चाहो। एनालिस्ट बनने के लिए या इसके आगे आपको एआई या डेटा साइंस के लिए जाना है, तो ऑब्वियसली आप जरूर पाइथन को फोकस करो, बिकॉज दैट इज प्रिडोमिनेंट लैंग्वेज विच इज रिक्वायर्ड, और वो बहुत हेवीली यूज होता है। ओके सर, Yeah, yeah. डिफरेंस क्या है पावर बीआई में और टैब्लू में? देखो, आप देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, वो सेल्स फोर्स का प्रोडक्ट है। दोनों के इंटरेक्शन में यूआई में बहुत डिफरेंस है। ओके, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस में जो ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे वैसे वहां पे नहीं, वहां पे फंक्शंस नहीं है, डैक्स नहीं है। वहां पे क्या होता है आपके पास में, रूल्स और जो होते हैं वो एलओडी, ओके, लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वो यूज किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, फंक्शंस यूज किया जाता है। सो इंटरेक्शन बेसिस में अलग है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि जो आप एक इनपुट सोर्स से कनेक्ट कर सकते हो, तो पावर बीआई में जितना आपको ऑप्शंस दिए गए ना, जितने अपॉर्चुनिटीज दिए गए, वहां टैब्लू में उतना थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। Even while sharing also, the options which are available while let's say connecting to client or let's say their databases or their sources, there are very less towards Power BI, sorry, there are very much more compared to Power BI and less with the Tableau. इसके अलावा डेटा हैंडलिंग के लिए भी उन्होंने जो प्रोवाइड किया है पावर बीआई में, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, फास्टर है। और टैब्लू को जब आप बड़ा डेटा सेट कंपेयर करोगे ना, बड़ा डेटा सेट, तब जाके वो थोड़ा फास्टर है। अगेन, टैब्लू खराब नहीं है, वो भी अच्छा है टूल, बट बहुत बड़ा डेटा सेट हो जहाँ पे आपका लेट्स से 20 लाख 15 लाख ऐसे करके कुछ डेटा रिकॉर्ड, जब बहुत बड़ा डेटा सेट होगा तो वहां पे वो फास्ट वर्क करता है। अदरवाइज पावर बीआई में ऐसे नहीं है कि वो भी स्लो करता है, दैट आल्सो डू, बट कंपैरेटिवली इट्स स्लो। ओके, तो ऐसे अपने अपने अलग अलग कॉइन्स हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ राइटिंग इज देयर। टैब्लू में थोड़ा डेटा को इनसाइट फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लगता है। यहाँ पे आपके पास में ना, आपके पास स्टोर से आप अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा चार्ट चाहिए होता है तो वो भी आप लोड कर सकते हो। सो थोड़ा सा फिजिबिलिटी अच्छा है इसका। इवन प्राइस में भी जो टैब्लू पेड है वो थोड़ा महंगा है, वेयर एज कंपेयर टू पावर बीआई का पेड है वो थोड़ा सस्ता है, लाइक दैट। हाँ, बोलिए ना। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। जैसे ये जो रिकॉर्डेड सेशन होता है सब क्लासेस वगैरह खत्म होने के बाद, अगर मुझे कुछ क्यूरी रहेगा उसमें, तो इस क्यूरी में मुझे सपोर्ट कौन करेगा चाहिए अगर मैं पूछूँ आप उससे? ओके, आप नेक्स्ट, अगेन मैं ही अवेलेबल रहूंगा नेक्स्ट डे।
आपको लेट्स से मॉर्निंग पकड़ लो, जैसे ऑफिस में है तो 1 PM से लेके 4 PM तक आप कभी भी 4 PM के 1 PM तो चलो मैंने वर्क का बताया, सुबह 11 बजे से मैं अवेलेबल हो जाता हूँ, 11 AM से अवेलेबल हो जाता हूँ मैं। आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, आपके क्वेरीज अगेन कनेक्ट कर सकते हो, मतलब क्या है आपको क्या करना है, देखो प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने कोई एक पर्टिकुलर लेट्स से डेटा है, वो आपने पावर BI में लोड करने की कोशिश की आपके सिस्टम में, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ओके, बेस्ड ऑन दैट लेट्स से आपको कुछ एरर आया, कुछ प्रॉब्लम आया ना। ये हमेशा आपको एक चीजें ध्यान रखनी कि आपको जितना भी हमने वीडियो या फिर जितने भी आपको डिटेल्स प्रोवाइड किए हैं, क्या आपने फॉलो किए हैं, वो आपको मुझे बताना है कि दिस। उसके अलावा कुछ एरर आता है तो यस, आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे व्हाट्सएप कर देना है कि सर वाइल डूइंग दिस इज एन एरर। हाँ, वो एरर क्या है, कैसे है, आई विल राइट डाउन, आई विल कनेक्ट विथ यू, बिकॉज उसी समय में अवेलेबल हूँ, उसका कोई गारंटी नहीं है। एट दैट मोमेंट आई विल शेयर यू एट व्हाट टाइम वी विल बी कनेक्टिंग, और कैसे कनेक्ट करना है, फिर मुझे कनेक्ट करने की जरूरत है भी कि नहीं। अगर मैं आपको एक कोड दे दूंगा वो हो जाएगा, तो इन दैट वे वी विल रिजॉल्व इट। इट डिपेंड्स ऑन हाउ इंटेंस दैट एरर और दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम आर। ओके, इज इट क्लियर? सर मुझे एक क्वेश्चन था, बोलिए ना। वीक में कितने आवर्स ये करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा इसके लिए? ओके, आवर Minimum. सेशन, हाँ हमारा सेशन जो है 7:30 से, जैसे आपने देखा होगा 7:30 से 9 तक का है, सो इट्स प्रोबेबली 1.5 आवर। ओके, 1.5 आवर, Okay. डेढ़ पकड़ लो। सो बेसिकली है क्या, इसके अंदर में आप जितना भी ट्राई करोगे तो ठीक है, प्रोबेबली इतने में ऑब्वियसली हम सब सीख रहे हैं। इसके अलावा आपको जो प्रैक्टिस करना है डेली एटलीस्ट, अगेन डिपेंड्स ऑन कि आप एकदम नए हो या आपको बेसिकली फंक्शंस यूज करना आता है, सब आता है तो ठीक है। अदरवाइज बहुत नया है एकदम है तो एटलीस्ट 2 आवर्स डेली निकालिए, जिसमें आपको खुद ब खुद ना नोट्स भी निकालने, जो वीडियोस देखते हो ना उसमें उसमें नोट्स भी निकालने होंगे आपको खुद का। मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा PDF, लेकिन PDF क्या रहेगा, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो मैं सिखाऊंगा उसका PDF रहेगा, बट आपको जो नोट्स निकालने हैं, जो आपको सीखना है, वो तो आपको वीडियो के थ्रू मिलेगा, तो खुद के नोट्स निकालने हैं, उस नोट्स के बेसिस में आपको प्रैक्टिस करना है, जो किया है वही आपको रिपीट करना है। ओके, अगर आप ऐसे डेली 2 घंटे भी दोगे तो भी इनफ रहेगा, दैट विल आल्सो वर्क। इज इट क्लियर? थैंक यू। आफ्टर कोर्स सर जॉब मतलब हमें ढूंढना है क्या, आपकी तरफ से कोई इंटरव्यू लाइनअप होगा? ओके, आपको प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे वो बाद में। टेक्निकल कुछ क्वेरीज है क्या? Actually, regarding of the Python and SQL, it is required for only BI developer or consultant also? नहीं, कंसल्टेंट के लिए भी लगता है, BI डेवलपर के लिए, दोनों के लगता है, ऐसे कुछ नहीं। ओके, बेसिकली एनालिसिस के लिए ज्यादा लगता है। यस, एनालिसिस वालों के लिए ज्यादा लगता है, बिकॉज यूजिंग पावर BI, सॉरी यूजिंग पाइथन, आप जो विजुअल्स, ओके, जो विजुअल्स आपको लगता है कि यार मैं जो वहां पे अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल वायलेंट चार्ट्स, ऐसे कुछ है जो मुझे पाइथन के कोडिंग के थ्रू लेके आना है, यू कैन डू दैट आल्सो। सो डेवलपर के लिए नहीं है इतना, बट कंसल्टेंट के लिए ज्यादा लगता है। ओके, Okay. It means we have the 2.5 year experience in that, and then it's required as a basic for Python for a developer profile. एग्जैक्टली करेक्ट, बेसिक लगता है, कोई ज्यादा नहीं, ज्यादा इसमें, क्योंकि And देखो डेटा प्री प्रोसेसिंग नहीं कर पाओगे आप वहां पे, इट्स ओनली फॉर विजुअलाइजेशन पर्पस ओनली। and that level of the learning is completed from this class only, na? Yes, we'll do that, Anything I'll is provide that. required from other. Yes, I'll provide every visualization methods whichever is required for Python to connect, and I'll provide that. Okay, Sir, entry level is 5, right? entry level Is up to 5 to 6, as you are saying. Salary I was saying. हाँ, एक बार रिपीट करेंगे, आपका आवाज बीच में ना ब्रेक हो रहा है, आप थोड़ा एक बार रिपीट करेंगे प्लीज, आपका माइक ऑफ है। सर प्रोजेक्ट से जो आप करवाएंगे वही सफिशिएंट है कि हम लोग को बना के देने होंगे प्रोजेक्ट? क्या करने होंगे? प्रोजेक्ट जो सर आप बनवाएंगे वो उतने प्रोजेक्ट सफिशिएंट है कि हम लोग को भी बना करके ये देने होंगे ओके, प्रोजेक्ट आपको? देखो मैं जो आपको 3 प्रोजेक्ट दूंगा ना, उसका इंटेंसिटी तो काफी है, इट विल बी इनफ, बट अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं, बेस्ड ऑन जैसे होता है ना कि नहीं मेरा तो सर 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ मैं, आई एम हैविंग दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपको लगता है तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आप रेज्यूमे में क्यों ऐड कर रहे हो ऐसा कोई नहीं पूछेगा, यू कैन ऐड दैट आल्सो। ओके, यू कैन फ्रीली डू इट, नो इशू विद दैट। Sir, I would think entry level salary, as you say, up to 5 to 6 LPA. So 3 say like 3 to 5 years, how much growth we can see over there? Salary. कितने इयर्स के इसमें?
3 से 5 साल के बाद। ओके, 3 से 5 साल के बाद में आप आराम से 7 लाख 8 लाख आराम फ्यूचर से ले स्कोप सकते हो। सर, व्हाट इज वो भी फ्यूचर स्कोप ऑफ इट? वो भी आपको डिपेंड है कि आप मतलब कितना मतलब उसमें इंडल्ज होते हो। आप अगर एसोसिएट से कंसल्टेंट बन जाते हो या पावर बीआई डेवलपर ओके वो कर लेते हो तो यस आप आराम से 10 लाख 12 लाख भी ले सकते हो। एंड सर जैसे कि अभी आजकल एलएलएम्स वगैरह बहुत सारे जॉब्स टेक अवे कर रहे हैं, तो पावर बीआई को भी लाइक इस टाइप का कुछ रिस्क वगैरह है इन फ्यूचर? देखो अभी तो इतना नहीं है इसमें, बट आगे 5 साल में तो कह नहीं सकता। बट अगेन आई डोंट थिंक देयर इज एनी सच टाइप, क्योंकि खुद को देखो माइक्रोसॉफ्ट खुद को भी इवॉल्व करेगा ही ना। वो तो ऐसे थोड़ी रहेगा कि नहीं पावर बीआई यूज कर दिया तो बस उसको ऐसे ही एक जगह पे रखेंगे। दे विल आल्सो इवॉल्व, सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सर ये क्लास जैसे स्टार्ट हो चुकी है तो कितने लेक्चर्स पहले भी हो चुके हैं? यस पार्डन। लाइक पावर बीआई क्लासेस ऑलरेडी स्टार्टेड राइट? हाँ हाँ। तो कितने लेक्चर्स हो चुके हैं पहले, लाइक हाउ मच वी हैव यूज्ड? तीन सेशन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 सेशन हो चुका है। ओके ओके, इनकी रिकॉर्डिंग हमें अगर है हम अवेलेबल है सैटरडे आप। संडे भी यस यस। क्लासेस नहीं है क्या सैटरडे सर? संडे नहीं होता है, वीक डेज में होता है। ओके मंडे टू फ्राइडे। एक बेसिक ना व्हाट यू हैव टॉट। ओके एनीथिंग एल्स? या दानेश्वर बोलिए। हाँ, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का वो सर्टिफिकेट के लिए भी होगी क्या हम प्रिपेयर? माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा प्रोजेक्ट? सर्टिफिकेट आता है ना एक माइक्रोसॉफ्ट का, वो भी इसमें कवर होने वाला है? नहीं नहीं नहीं, उसका उसका यहाँ पे कोई अभी कंसर्न नहीं फिलहाल। माइक्रोसॉफ्ट का आप मेरे ख्याल से PL300 के बारे में बात कर रहे हो आई गेस। हाँ हाँ। ओके PL300 का यहाँ पे कोई मतलब रेलेवेंट डिटेल्स यहाँ पे नहीं है, बट यस यहाँ पे जो सिखाया जाएगा उसके रेलेवेंसी आप यस अराउंड देख सकते हो कि 70% नॉलेज यस ऑब्वियसली आपको वहाँ पे भी वही दिया जाएगा, सेम परसेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर आई हैव वन क्वेश्चन। क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुका है क्या? हाँ शुरू हो चुका है। अच्छा जिन्होंने अभी मुझे PL300 के लिए पूछा ना, आपको सिलेबस जब शेयर करेंगे ना तो ऑब्वियसली क्या करना है कि एक बार आप चेक कर लो PL300 से ओके। तो आपको 70 नहीं, मैं तो कहूँगा 70 के अबव ही मिलेगा, बट अराउंड 80% ऑफ सिलेबस जो है वो सेम ही मिलेगा। सो यस यू कैन हेज ऑफ विद दैट ऑल्सो। हाँ अभी जो कह सर रहे थे कब से कि शुरू हो चुका है? हाँ क्या बोले? क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गए हैं? ऑलरेडी शुरू हो चुका है, यस यस ऑलरेडी शुरू हो चुका है। 3 सेशन हो चुके हैं, तो कल रेगुलर सर बैच चालू हो जाएगा। आपको रजिस्टर करना है, 3 सेशन के रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, इसीलिए आपको जल्द से जल्द कर लीजिए ओके। सर क्लास का कोई सर्टिफिकेट है क्या आफ्टर, क्योंकि फ्रेशर ओके के लिए वो? ठीक है वो भी आपको बताएंगे। चेतन सर है वो भी बताएंगे आपको। ओके टेक्निकल कुछ क्वेश्चंस है तो चलो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे पास ऑन करता हूँ, क्योंकि आपकी कुछ क्वेरीज है जो प्लेसमेंट के रिलेटेड है, मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टेक्निकल कंसर्न्स? ज्ञानेश्वर बोलिए। जैसे प्लेसमेंट के बाद हमें कोई क्वेरी आ रही है, उसके अंदर समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे सपोर्ट मिलेगा? यस यस प्लेसमेंट के बाद में मतलब बेसिकली किस तरह का प्लेसमेंट के बाद में? आई डिडंट गेट इट। मतलब कुछ कुछ डेटा में कहीं पे कुछ क्वेरी आ रही है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो रही है, या फिर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो वहां पे सपोर्ट मिलेगा? किस चीज का कॉम्प्लेक्शन मतलब किस चीज का कॉम्प्लेक्सिटी, वो नहीं समझ में आ रहा है ना। मतलब टेक्निकल टर्म्स में पावर आप बीआई में बोल जैसे रहे हो या किसमें? टेक्निकल बोलिए, या फिर जैसे कोई डेटा है जो अंडरस्टैंड करने में, या फिर उसको विजुअलाइज कैसे करे, और वो या जिस हिसाब से हाँ जो हाँ नहीं नहीं कंसेप्ट है उसका उसके अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं, वो करो कोई नहीं, वो तो हम सपोर्ट करें, उसका कोई इशू नहीं है। आप कभी भी आर्बर को कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से आप डिटेल्स अगेन आपको ही आप ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ही डेटा शेयर नहीं कर पाओगे, इट्स कंपनी डेटा। स्टेप्स है, स्टेप्स के उसके सिनेरियो बेस में हम हेल्प करेंगे, बट एग्जैक्टली वही रहेगा वो तो आप भी नहीं बता पाओगे ओके। बट विल डू नो नहीं इशू। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन जहाँ पे जो एरर आ रहा था वो एरर के बेसिस पे कुछ कर सकते हैं। यस 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 उतना तो हेल्प करेंगे ना, उसमें क्या है, विल डू दैट ऑल्सो। ओके ओके क्लियर। ओके आई थिंक टेक्निकल कोई क्वेश्चंस नहीं है। जो प्लेसमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस है यस प्लीज आप कैरी ऑन कीजिए। आई स्टॉप माय सेल्फ ओवर हियर। Actually, थैंक यू फॉर द प्रेजेंस। I have the question related to the lab practice. या बोलिए किसके लिए? Uh, for Python practice, it means the any assistant for the Python. Yeah, I'll help you, no issue with that. It means the live when we have the practice on one
a little bit course and anything syntax. If you have getting अच्छा, error on that पाइथन का time, how स्पेसिफिक to. सेशंस, ओके ओके, इसके लिए आप एक बार जो अपने प्लेसमेंट है ना उनसे एक बार बात करो, ओके, दे विल गाइड यू विद दैट। Okay. You या not cover that Pythons? Yeah, basic या only. पार्डन, You cover Python or any other yeah, libraries? we will cover Python visuals only over here, but if you want further, again, more of the Python language, or let's say more of the practice with respect to that, then you will have to connect this arm, because that will be a different story, and that will be different source, okay? So please ask with them also. Okay. But for Yeah, that course you provided. yeah, I'll be there, no issue with that. Okay, thank you everyone, I'll pass on. Yeah, Chetan ji. Yes sir, thank you sir for your Yeah. session. जिसको भी अभी प्लेसमेंट डाउट्स है ना, they can ask me here. हेलो। इसके पहले कोई बैचेस का प्लेसमेंट हुआ है क्या? मतलब प्लेसमेंट एवरेज पैकेज वगैरह? यस हुआ है ना, इसके पहले हमारे 4 बैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं पावर बीआई के, जिसके प्लेसमेंट हो चुके हैं। लेटेस्ट अभी जो लास्ट बैच थे उसके प्लेसमेंट्स चालू है, कुछ पाइपलाइंस में है, कुछ कैंडिडेट्स की प्लेसमेंट हो भी चुके हैं। सर एवरेज पैकेज क्या होता है? एवरेज देखो, स्टार्टिंग अप से आपके से 6 एलपी से होती है, ऑन एवरेज वो 9-10 तक भी रीच हो जाती है। 6 अरबर से आपको मिनिमम 6 एलपी पैकेज शुरुआत होता है। नाउ टोटली डिपेंड्स कि आपका कैपेबिलिटी कितना है एंड हाउ फार यू कैन रीच। अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, ये कोर्स 100% करते हो, गेट वेल प्रिपेयर्ड, तो आप फ्रेशर्स के लिए 8-9 कितना है एलपी सर? तक भी रीच हो सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए इन द सेंस आपका कभी ग्रेजुएशन हुआ है? 23। हाँ, then you can reach up to 5 to 6 LPA. Sir, one more thing. If we got placed in a particular company, तो हमें ऐसे कि हम और भी कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते फॉर लाइक नेगोशिएशन एंड ऑल, क्या एक इसमें हाँ, डेफिनेटली। देखो, अगर आपको कोई पैकेज ऐसे मिलता है, कम मिलता है, यू गेट द ऑफर, नो, तो यू कैन होल्ड दैट ऑफर, और आप काउंटर ऑफर के लिए प्लेसमेंट्स को और ले सकते हो। ऐसा कुछ ऐसा हम रोक नहीं लेते हैं। इफ यू थिंक कि आपका पोटेंशियल है और 2-3 लाख का पैकेज ग्रैब करने का एक्स्ट्रा, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपके प्लेसमेंट्स को चालू रखते हैं टू गेट यू अ गुड पैकेज। You will support till then. Yes, definitely. सर फ्रेशर्स के लिए जॉब ओपनिंग्स होती है क्या? फ्रेशर्स इन द सेंस, अगर आपका पास आउट अभी हुआ है लाइक 25 में या फिर 24 दिसंबर के बाद, तो बहुत मुश्किल है। बट 24 मई और उसके पहले हुआ है तो डेफिनेटली जॉब वैकेंसीज है, और पैकेजेस भी मिलते हैं। ऑन एवरेज 5-6 से चालू होते हैं। अच्छा, जैसा कि अभी मेरा 25 में हो रहा है पास आउट। 25 में अभी पास आउट हो रहा है, मतलब ग्रेजुएट अभी तक नहीं हुआ है आपका, राइट? ग्रेजुएशन नहीं। नहीं, फोर कैसे, फिर एकदम ही फ्रेशर्स हो आप, तो फिर मिलना मुश्किल है फिर। ओके। हेलो सर, मैं 23 बैच का होता तो कोई दिक्कत है क्या प्लेसमेंट के लिए फ्रेशर में? नहीं, 23 बैच वालों को कुछ नहीं दिक्कत है। सर, क्लास खत्म होने के बाद कितने चांस मिलेंगे प्लेसमेंट के लिए? हेलो, मतलब अगर एक कंपनी में सिलेक्ट नहीं होते तो कितने चांसेस मिलते हैं प्लेसमेंट के लिए? मतलब कितनी कंपनी के लिए आपके रहते हैं? राइट, ऐसा मेरा कुछ नंबर नहीं है। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता ना, तब तक हम आपको कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके। सर, आपकी कंपनी की तरफ से कॉल प्रोवाइड करते हो क्या? हमें ढूंढना पड़ता है? इंटरव्यू वगैरह अरेंज करते हो क्या? यस, अभी मेरी तरफ से कैसा रहता है ना, जो भी आपका एटीएस फ्रेंडली सीवी है वो मेरी प्रॉपरली टीम बनाती है, वो आपके साथ शेयर करती है, डिस्कस विद यू कि ये सब आपका सीवी बनाया हुआ है, एक्सप्लेन यू द होल सीवी। उसके बाद जो अप्लाईज करने रहते हैं naukri.com पे, लिंक्डइन पे, वो भी मेरी टीम करती है। सो उसके बेसिस पे आपको कॉल्स आते हैं।
और जो भी मैं नया प्रोफाइल आपका बनाता हूँ नौकरी पे और जिस पे अप्लाई करता है ना, उससे क्रेडेंशियल्स है कि यूजर आईडी पासवर्ड हम आपके साथ भी शेयर करते हैं, सो आप भी आपकी तरफ से अप्लाई कर सकते हो। हेलो 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 ये हेलो सर हेलो सर, आई हैव yes, वन yes. क्वेश्चन। हेलो हाँ बोलिए ना, हेलो सुनाई दे रहा है। सर एक्सपीरियंस आप एडिशनल हेलो, कोर्स एक्सपीरियंस कंप्लीशन क्या बोल रहे सर्टिफिकेट तो रहता है क्या सर? आपको ऐसा सर्टिफिकेशन एकेडमी के थ्रू मिलता है, लाइक अर्बर के अकॉर्डिंगली आपको सर्टिफिकेट मिलता है, लाइक पावर भी आपने कंप्लीट किया है वो मिलता है आपको सर्टिफिकेशन। हेलो ओके आपकी सर। तरफ से एड ऑन एक्सपीरियंस ऐड होता क्या उस पावर बीआई का? जैसे मेरा ग्रेजुएशन 17 में हुआ है और पीजी 22 में हुआ है। ओके, 22 के बाद को कुछ वर्क एक्सपीरियंस है? हाँ 2 साल का जावा डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है। ओके, मतलब 24 और उसके बाद लाइक अभी मतलब आपका करियर गैप है क्या बीच में किधर ऐसा? हाँ हाँ 1.5-2 साल का है, मतलब सितंबर 23 से कंटिन्यू। ओके, नो वरीज ना, जो भी आपका करियर गैप है ना उसमें मैं प्रॉपर्ली प्रोफाइलिंग करता हूँ। तो प्रोफाइलिंग इन द सेंस क्या कि जो भी पावर बीआई के रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स है ना वो आपके सीवी में मैं ऐड करता हूँ। सो व्हेन एवर यू गेट अ कॉल ना, तो आपको वो 1-2 साल जब भी 1.5 साल जो आपका गैप है ना वो फिल होता है और उसके बेसिस पे आपको हाँ प्रॉपर्ली कॉल्स आते हैं कि एमएनसी कंपनीज से। फिर उसके बेसिस पे अगर अपन 2 साल का एक्सपीरियंस लगाएंगे तो उसके बेसिस पे कितने लाख का पैकेज मिलता है? अगर 2 साल का एक्सपीरियंस यू हैव इन पावर बीआई ना, तो यू कैन इजीली गेट अप टू 6-7 एलपी का पैकेज मिनिमम मिल सकता है आपको। काउंटर ऑफर भी ले सकते हो उसमें? यस डेफिनेटली। सर हेलो, आई हैव वन क्वेश्चन। हेलो यस बोलिए ना। हेलो सर, अपन जॉब यस अपॉर्चुनिटीज कैसे लेते हैं? मैं सिर्फ नौकरी या लिंक्डइन से प्रोफाइल अपलोड करके का दूसरा कौन सा सोर्स है आपका? मेनली सोर्स जिधर हम अप्लाई करते हैं और आपको कॉल्स आते हैं ना वो naukri.com ही रहता है, क्योंकि वही अभी इंडिया का सबसे बेस्ट चालू है जिसमें ज्यादा कंपनीज एम्प्लॉयज के लिए ढूंढती है। सेकंड प्रेफरेंस हमारा लिंक्डइन पे रहता है, बट मोस्टली फोकस नौकरी पे ही रहता है, naukri.com पे। क्योंकि मेरा कैसा है कि वो एक कोर्स है और अभी तक मैंने जितने कैंडिडेट्स प्लेस किए हैं उनसे भी मैं रेफरेंस लेता हूँ। वी हैव सम टाइप विद द एचआरस आल्सो। सो मेरे पास हर एक कैंडिडेट को प्लेस करने के लिए ना 3 to 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक ही ऑप्शन पे मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ। आई हैव 3 to 4 ऑप्शन के एक कैंडिडेट को प्लेस करने के लिए। ओके ओके हेलो हेलो यस बोलिए। यस सर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में आपका हेल्प होता है क्या? फिर अगर प्लेस होते हैं तो 6 महीने तक के प्रोबेशन पीरियड रहता है, बाद में राइट। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में अगर कुछ क्वेरी आती है तो फिर क्या सिनारियो रहता है? देखो, मेरी तरफ से जो भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन रहता है वो सक्सेसफुली होता है, कि वो मेरा यूएसपी एकेडमी का। सो वट एवर प्रोफाइलिंग आई एम डूइंग ना, वो 100% गारंटी ही रहती है। उसके बेसिस पे हम आपको गारंटी प्लेसमेंट्स ऑफर करते हैं। मतलब आपका प्रोविजन पीरियड 3 मंथ्स हो या 6 मंथ्स हो ना, जब भी आपका प्लेसमेंट होता है उसके 1 साल तक मैं आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस देता हूँ। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है ड्यूरिंग दैट 1 year आफ्टर योर प्लेसमेंट, यू कैन कम टू मी, आई विल प्रोवाइड इट डेफिनेटली हेल्प। ओके थैंक यू। हेलो हेलो यस बोलिए ना। सर मेरा एक सवाल था कि हाँ जैसे बोलिए। मेरा एजुकेशन चलते वैसे मैं जॉब भी कर रहा था और एजुकेशन में मेरा चल रहा था, तो उस टाइम पे आप मेरा एक्सपीरियंस कैसे दिखाओगे? क्योंकि मेरा ईयर ऑफ पासिंग 2022 है और ओके मैं इसके साथ, हाँ इसके साथ साथ जॉब भी कर रहा था। ओके, आपका ग्रेजुएशन 2022 में हुआ राइट? हम्म। ओके, उसके बाद आपको क्या एक्सपीरियंस है, लाइक 22 के बाद क्या वर्क एक्सपीरियंस है आपको? 22 के बाद अभी कंटिन्यू जॉब पे हूँ, मैं अभी वही कर ही रहा हूँ। अभी कदर कर रही हो? आपका पीएफ अकाउंट, पीएफ हिस्ट्री है कुछ? हाँ ये है। कि क्या प्रोफाइल पे आप काम कर रहे हो अभी? ये सेल्स में कर रहा है। सेल्स में? हाँ ओके ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर कैसा कि वो आपका कंपनी पीएफ हिस्ट्री में दिख रहा है तो मैं क्या करता हूँ ना, मेरे पास ऑप्शन क्या रहता है कि आपको जो सीवी में बनाता हूँ ना उसमें रेलिवेंट सिर्फ प्रोजेक्ट डालता हूँ। आपका भले प्रोफाइल वो हो, बट यू वाज डूइंग एज एन पावर बीआई का प्रोजेक्ट सब कर रहे थे जिसमें आपका जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हो ना,
उसके रिलेवेंट, क्योंकि जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो ना तभी आपका देखते हैं कि आपने क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं जो उसमें बेसिक आइडिया पावर बीआई का है या फिर एसक्यूएल का है या फिर पाइथन का है, जो भी आप ये कोर्स में सीखते हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं। इसके लिए मैं आपके मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ जिसमें हम आपको पूरा प्रिपरेशन करवा के लेते हैं कि आईटी में कंपनीज में ना आपके एचआर और टेक्निकल राउंड में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं पावर बीआई के रिलेवेंट, ऐसा है। हेलो जैसे सर। आप सर उसमें 2 एक्सपीरियंस years अपन करियर दिखाए। गैप है सर। हाँ, एक हेलो। एक करके पूछ गाइस। हाँ 2 years करियर गैप। हाँ ये आगे मतलब कोई प्रॉब्लम आएगा क्या सर पावर बीआई के फीस लिए? के बारे में बताएंगे क्या? यस एक मिनट सिर्फ इनका पहले डाउट क्लियर कर लेता हूँ। 2 years गैप है तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, जिसे मैंने बोला था कि जो भी आपका करियर गैप है ना मैं फिल करके ही आपका सीवी प्रॉपरली बनाता हूँ। सो व्हेनेवर यू गो इन द आईटी कंपनी आप एन एक्सपीरियंस कैंडिडेट ही जाते हो। इसके लिए हम कैसा करते हैं कि आपको जो ट्रेनिंग है उसमें को थियोरेटिकल प्रैक्टिकल पार्ट दोनों कवर करते हैं और आपके प्रोजेक्ट्स लेते हैं लाइव प्रोजेक्ट, कि जब भी आप इंडस्ट्री में काम करने को जाते हो ना यू हैव एन आइडिया कि एक्चुअली में काम कैसे करना है। फॉर एग्जांपल पावर बीआई का डैशबोर्ड कैसे डिजाइन करना है, इस पे आपके प्रोजेक्ट्स लेते हैं, आपको प्रैक्टिकल सेशंस देते हैं, एसक्यूएल इंटीग्रेट कैसे होता है पावर बीआई के साथ, सिंटैक्स एरर्स, तो ये सब प्रैक्टिस सर आपसे करवा के लेते हैं सो यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड व्हेन यू गो इन द आईटी कंपनीज फॉर योर वर्किंग। ओके सर। राइट। हेलो हेलो फीस सर, स्ट्रक्चर इंटरव्यू क्वेश्चन भी आप प्रोवाइड करते क्या? इंटरव्यू क्वेश्चंस का हेलो कैसा है ना, पहले हम आपको जो मॉक इंटरव्यूज लेते हैं ना उसमें यू कैन गेट इन प्रॉपर आइडिया कि क्या इंटरव्यूज क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर मैं मॉक में आपको 10-15 क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ तो कंपनीज ऑल अराउंड ना वही क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के पूछती है, बट वो बेसिक लाइन जो उसका रहता है ना वो सेम कॉन्टेक्स्ट रहता है। हेलो यस बोलिए। सर, मेरा बीसीए पास आउट हूँ मैं 2023 और उसके बाद कोई वर्क हिस्ट्री नहीं है मेरी और मेरा पीएफ अकाउंट भी नहीं बना है। तो एक्सपीरियंस ऐड ऑन होने के बाद पीएफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो मतलब पीएफ अकाउंट मेरा बना ही नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम हैगा, अगर आपका नहीं बना है तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद कुछ नहीं है तो मैं मेरे अकॉर्डिंग आपके बेसिस पे पावर बीआई का एक्सपीरियंस ऐड कर सकता हूँ जो आपके रिलेवेंट हो, जितना आपको कैपेबिलिटी है अपना ना आपका उसके अकॉर्डिंग मैं उतना एक्सपीरियंस पावर बीआई का ऐड कर सकता हूँ। ओके सर। यस सर, आई हैव क्वेश्चन। सर जैसे कि ये कोर्स होने के स्टार्ट होने के बाद मैक्स टू मैक्स कितना टाइम लगता है प्लेसमेंट होने के लिए? मतलब देखो अब आपको इस महीने कोर्स चालू और हो गया 20 तारीख को आज, तो कितना टाइम लगेगा मैक्स टू मैक्स हमें प्लेस होने के लिए? देखो आपको 45 डेज तो सिलेबस और लाइव प्रोजेक्ट्स में जाएंगे, उसके बाद आपका प्लेसमेंट प्रोसीजर चालू होता है विच अराउंड ऑन एवरेज आपको 1 मंथ लगता है, जिसमें आपका सीवी मेकिंग, आपके मॉक इंटरव्यूज और प्लेसमेंट्स कॉल लगते हैं। अभी ओके कैसा मैंने ऑन एवरेज 1 महीना बोला है, कोई कोई कैंडिडेट्स रहते हैं उनका 1 महीने के पहले भी होता है। कैसा कि जितना जल्दी आप मॉक इंटरव्यूज क्लियर करोगे उतना जल्दी मैं आपके प्लेसमेंट्स कॉल चालू करूंगा। जितना ओके टाइम आप प्रिपरेशन के लिए सेल्फ लोगे कि सर मेरा अभी तक मॉक के लिए मैं तैयार नहीं हुई, आई नीड नेट मतलब और मेरे को 10 से 15 दिन चाहिए, हाँ उतना हाँ लेट आपको प्लेसमेंट्स कॉल के लिए होंगे। इसलिए ऑन एवरेज 1 महीने के आसपास आप पकड़ लो। ओके ओके ओके। और सर नेक्स्ट बैच जो है मतलब कब चालू होने वाले, कुछ शेड्यूल है आपके पास? क्योंकि अभी ये बैच, हाँ बोले ना। मुझे एक्चुअली एक एक 2 महीने का गैप चाहिए था। जैसे कि मैं आपसे मिला तब मैंने बताया था कि मैंने सीडेक कंप्लीट किया है, तो मैं सीडेक की तरफ से जितने कॉल्स अगर मुझे मिल रहे हैं 1-2 महीने के लिए तो वो मैं लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए मैं थोड़ा ये पॉज करना चाहता हूँ क्लास। तो नेक्स्ट बैच कब तक है आप बता सकते हैं मुझे? अभी नेक्स्ट बैच तो अभी ये आपका बैच मार्च में खत्म होगा, अप्रैल एंड में नया बैच चालू हुआ तो, क्योंकि कैसे है ना जैसे मार्केट में वैकेंसीज रहती है उसके अकॉर्डिंगली वी प्लान द बैच एंड गिव यू प्लेसमेंट। तो अभी ओके फिलहाल नेक्स्ट बैच का डेट तो नहीं है, बट ये जब बैच होगी ये बैच के कैंडिडेट्स जब प्लेसमेंट्स के लिए चले जाएंगे, 60-70% कैंडिडेट्स का प्लेसमेंट होगा ना, हाँ देन हाँ वी प्लान फॉर द न्यू बैच। उसके लिए अप्रोक्स अब 1.5 से 2 महीना पकड़ लो और। ओके ओके ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली अप्रैल। हाँ अप्रैल एंड मिड ऑफ या फिर एंड ऑफ अप्रैल, क्योंकि कैसा कि ओके अभी ओके ये 2 मंथ जो है ना मार्च एंड अप्रैल ये हाँ हाँ हायरिंग पीरियड है अभी आईटी का, ओके तो ओके दिस ओके इज द राइट टाइम टू एंटर इन आईटी
ऐसा। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। सर Yes. ये बैच कब तक खत्म होगी एंड इसका प्लेसमेंट मोस्टली कब तक खत्म होगा, आप बता सकते हैं? यस, अब ये बैच तो आपका मार्च एंड तक खत्म हो जाएगा और आपका प्लेसमेंट अप्रैल मंथ में होगा। ओके एंड सर प्रीवियसली कितने लाइक स्टूडेंट पहले से बैच में है? पहले से बैच में ऐसा नहीं है, क्योंकि कैसा कि ये भी डेमो ही है। पहले के बैच में अराउंड 18 या फिर 19 जन है, क्योंकि कैसा है कि मैं मैक्सिमम 35 कैंडिडेट्स ही लेता हूँ एक बैच में। तो वो एक बार काउंट हो जाए ना तो फिर मैं बैच क्लोज कर देता हूँ। तो ये 1-2 दिन में जैसे रजिस्ट्रेशन उतने कंप्लीट हो जाते हैं, नेक्स्ट 10 या 15 रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे ये वाले डेमोस के बाद, तो फिर हम बैच क्लोज करते हैं और फिर रेगुलर बैच चालू कर देते हैं। श्योर, ओके। और एंड सर एग्रीमेंट सर का कैसे होता है, मतलब बॉन्ड पेपर वगैरह होता है या मतलब कैसे होता है एग्रीमेंट का? अग्रीमेंट में क्या है ना, जो भी मैं आपको वर्बली कमिटमेंट दे रहा हूँ या फिर आपसे जो भी अर्बर के काउंसलर से बात हुआ है ना, वो सिर्फ मैं आपको रिटर्न में देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट रिगार्डेड, और जो भी आपका फीस स्ट्रक्चर है, लाइक रजिस्ट्रेशन फीस और बाकी का जो फीस आपको भरना है वो प्लेसमेंट होने के बाद, जॉब लगने के बाद भरना है। सो ये सब क्लॉजेस में वो अग्रीमेंट में मेंशन करता हूँ, सो इवन यू कैन हैव समथिंग टू ट्रस्ट ऑन अस, राइट। ओके। इसके लिए मैं एंड आपको सर इन रिटर्न इस प्रोवाइड करता हूँ। प्रोसेस के लिए किन से बात करना है, जैसे कि ये कॉल जैसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इफ वी आर Right. गोइंग अहेड देन हु शुड वी टॉक टू? आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मैंने मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है, फिर से एक बार डाल दो। मेरा नाम चैतन्य है, आई एम द हेड काउंसलर अर्बन में, तो आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। मैं मेरा नंबर एक बार फिर से चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। एंड सर एक्चुअली आई हैव टॉक विद कुणाल आल्सो, ओके, सो ही इज आल्सो इन सेम फील्ड एज यू। यस, वो भी काउंसलर है, आप उनसे भी बात कर सकते हो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने मेरा भी नंबर डाल दिया है, अब मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, कुणाल से कर सकते हो, या जिससे भी आपका बात हुआ है रिगार्डिंग पावर पे, जिन्होंने आपको सजेस्ट किया ना, आप उनसे भी बात कर सकते हो, कोई बात नहीं। श्योर, ओके। यस जैसे मेरा एक क्वेश्चन था। बात करनी है क्या? हेलो सर, यस, हाँ बोलिए। फीस रिगार्डिंग वन ऑन वन बात करनी है क्या? क्या आप बता सकते हैं? नहीं, मैं आपको एक बार, वही बहुत जन पूछ रहे फीस रिगार्डिंग ना, मैं आपको एक बार फीस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर देता हूँ। इनिशियली आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, विच इज 10,000, जो आपको वन टाइम पे करना है। वंस यू गेट रजिस्टर विद अस, आपका रेगुलर बैच चालू होता है। आप नए जो रजिस्टर कैंडिडेट्स का ग्रुप है, जिसमें जो आपके मेंटर अभी जिन्होंने आपका डेमो लिया, दीपक सर, वो अवेलेबल रहते हैं, उनका पर्सनल नंबर आपके साथ शेयर होता है। फिर आपके सेशंस हो जाते हैं, आपके लाइव प्रोजेक्ट हो जाते हैं, देन योर प्लेसमेंट प्रोसीजर गेट स्टार्ट। उसके बाद जब आपका प्लेसमेंट हुआ, आपको ऑफर लेटर आया, आपने कंपनी ज्वाइन कर दिया, उसके बाद आपको आफ्टर प्लेसमेंट जो फीस है हमारी, वो पे करना है, विच इज 1,90,000, जो आप इंस्टॉलमेंट्स में भर सकते हो। इंस्टॉलमेंट्स का कैसा है कि आप जब जॉब लगता है, आपको आपका ऑफर लेटर आया, आपने कंपनी ज्वाइन कर दिया, उसके 10 to 15 डेज के बाद आपको 50% पे करना है सिर्फ इनिशियली। रिमेनिंग 50% आप आपके सैलरी में से 2 या 3 मंथ्स में, मैक्स टू मैक्स 4 मंथ्स में कवर कर सकते हो। सर जो भी प्लेसमेंट होगा सब ऑनलाइन होगा या फिर लाइक गो थ्रू होगा? मतलब इंटरव्यू राउंड्स पूछ रहे हो आप? नहीं, हाँ, इंटरव्यू लाइक विद कंपनीज एंड ऑल। हाँ, मेरी तरफ से जाते तो भी आपको मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स दो राउंड ही होते हैं। लाइक फर्स्ट वुड बी एचआर राउंड, जो टेलीफोनिक रहता है। आपको जो भी एचआर कंपनी की, जो भी कंपनी से आपका कॉल है, उन आपका बात एचआर से होता है फोन पे। एंड फिर वो सिलेक्ट होने के बाद जो सेकंड राउंड इज ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस, जो टेक्निकल राउंड रहता है। 99% में ये 2 राउंड ही होते हैं कंपनीज में। 1% कंपनी है जो आपको इन पर्सन थर्ड राउंड के लिए बुलाती है, बट 99% 2 ही राउंड आपके होते हैं। ओके, हेलो यस, अविनाश ज्ञानेश अपने हैंड रेस के कुछ पूछना है? यस यस, पूछे ना। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप नौकरी से जब अप्लाई करते हैं और उस हिसाब से सीवी बनाया जाता है, तो जेडी के हिसाब से सीवी हर बार चेंज किया जाता है? नहीं, आपका एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक जो प्रोस्पेक्टर है, जैसे पावर बीआई डेवलपर हो गया, पावर बीआई कंसल्टेंट हो गया, पावर बीआई एसोसिएट हो गया, ये सब प्रोफाइल आपके जो बनते हैं ना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स,
तो उसको मायने रख के हम आपका एक प्रॉपरली सीवी बनाते हैं। अगर वी फील कि वो सीवी से आपको उतना कॉल्स का फ्लो नहीं आ रहा है तो वी चेंज, क्योंकि कैसे करते हैं हम, एक हर एक वीक या फिर 5-6 दिन में आपका सीवी थोड़ा सा अपडेट करते हैं, क्योंकि वो एचआर को जल्द से जल्द फ्लैश हो और वो आपको कॉल्स प्रोवाइड करे। ओके। यस गाइस, और कुछ डाउट्स? ये फीस के हेलो ऊपर जो सर। आपने बताया था, ये इसमें ऑफर लेटर आने के बाद 50% देना है, हाँ राइट। तो इसमें कुछ हो सकता है कि बाद में इंस्टॉलमेंट में ही करे? कैसा है कि इंस्टॉलमेंट्स आई नो कि लार्ज अमाउंट है, तो कैसा है कि वंस यू गेट द ऑफर लेटर ना, आप सामने से आके जो भी आपके कोऑर्डिनेटर या फिर आप मुझसे मिलके एक बार डिस्कस कर सकते हो व्हाट्स योर फाइनल कंडीशन। अकॉर्डिंग टू दैट हम एक बेड के अमाउंट डिसाइड कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप वो उतना पे कर लो और रिमेनिंग जो है आप आपके सैलरी में से मुझे इंस्टॉलमेंट्स में भर सकते हो। सर ये थोड़ा ओके ओके। निगोशिएबल है क्या? जी सर। क्या बोल रहे हो? फीस यस वगैरह वी कैन। निगोशिएबल है क्या सर? जी सर। द आफ्टर प्लेसमेंट अमाउंट हाँ सर। कौन सा नेगोशिएबल है बोल रहे हो? आफ्टर प्लेसमेंट जो है वो मतलब ये वो सबको नेगोशिएबल सेम है या डिपेंड्स ऑन हाँ पैकेज? नहीं, निगोशिएबल तो नहीं है, बट हाउ वी कैन डू ना, क्योंकि मैं कैसे कि आपको फोर्स नहीं कर सकता उतना बड़ा अमाउंट पे करने के लिए। आपके पास नहीं होगा, मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, उसमें क्या होगा ना, प्लेसमेंट हाथ से निकल जाएगा जिसमें आपका भी और मेरा दोनों का लॉस है। तो हाउ आई प्रपोज यू ना कि आप क्या करो, जब आपका ऑफर लेटर आता है ना, यू कम विद द प्रपोजल कि सर मैं इतना इतना अमाउंट अभी तक भर सकता हूँ, उसके बाद मैं इतना इतना करके भर सकता हूँ। वी कैन सेट, वी कैन डिस्कस, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम एक अमाउंट फिक्स करेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन पे। ओके। तो जैसे मुझे एक क्वेश्चन था कि अगर प्लेसमेंट हो गया या फिर ऑफर लेटर जनरेट हो गया और उसमें अगर ये लग रहा है कि सैलरी कम है या फिर जिस हिसाब से पैकेज चाहिए उतना नहीं, काउंटर ऑफर के लिए भी हम ट्राई कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, आप वो ऑफर होल्ड कीजिए। वो ऑफर के बेसिस पे अगर फॉर एग्जांपल आपको 6 लाख का पैकेज मिला, बट यू थिंक कि आपका पोटेंशियल है सॉरी, आपका 8 लाख का एक पैकेज। कॉल आ रहा था, आपका आवाज नहीं आया मुझे, एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप? यस डेफिनेटली, मैं क्या बोल रहा था, अगर आपको कोई 6 लाख का पैकेज या फिर ऑफर आया, राइट, तो उसके बाद भी यू थिंक कि मेरा पोटेंशियल है कि 8 तक में जा सकता हूँ, तो वो आप ऑफर होल्ड पे रख दीजिए। यू कैन ट्राई फॉर 8 LPA। मेरे तो कॉल्स बंद नहीं होते, आपको प्लेसमेंट लगने के बाद भी मैं आपका अकाउंट इतना जल्दी डीएक्टिवेट नहीं करता, आपको उसके नेक्स्ट 2 या 3 मंथ्स में भी कॉल्स आते ही रहते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली काउंटर ऑफर, आप होल्ड कर सकते हो वो ऑफर को। तो वहां पे सजेशन के बेस पे आप भी बता सकते हो ना, मतलब कि अगर ये पैकेज कम है उसके लिए आगे के लिए भी आप पुश कर सकते हो, क्योंकि मॉक इंटरव्यू वो सब आप ही अरेंज करने वाले। राइट करेक्ट, क्योंकि मेरे को वो जजमेंट कभी आएगा जब व्हेन आई टेक ए मॉक इंटरव्यूज, तभी मेरे को आपका राइट। कैपेबिलिटी एग्जैक्टली पता चलेगा ना। तो ट्रेनर्स भी मेरे को असेसमेंट देते हैं कि आपने असाइनमेंट हर एक किया है, आपका अटेंडेंस अच्छा है, आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, तो ये सब का हम असेसमेंट लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट वी सपोर्ट यू, ऐसा। ओके। हेलो सर। जैसे कि हम एक क्लाइंट के साथ जाते हैं, एक्सपीरियंस पे जो कंपनी लगा रहे उसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स, मतलब सपोर्ट जो है स्पॉट वेरिफिकेशन का सपोर्ट है या और लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा तो उसका वेरिफिकेशन के लिए। और सेकंड थिंग, एज अ करंटली जो वर्किंग कंपनी है उसको हाइड करके एज ए पावर बी डेवलपर का एक्सपीरियंस लगाने, तो वो कैसे मैनेज होगा? वो क्वेश्चन है। वो मैनेज कैसा होता है ना, तो वॉट एवर डॉक्यूमेंटेशन इज टोटली मैनेज बाय अर्बर एकेडमी। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन बनेगा फॉर एक्सपीरियंस पर्पस, जो भी है लाइक ऑफर लेटर, ज्वाइनिंग लेटर ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने की कंपनी मांगती तो वो सब प्रोवाइड होता है अर्बर से ही। अभी कंपनीज जो भी मैं मेंशन करूंगा आपकी सीवीज में, तो वो हमारे तरफ से ही रहते हैं विच आर फिजिकली प्रॉपरली प्रेजेंट। अगर आपके सामने की कंपनी उधर फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी जाती है ना, तो वी डू इट, क्योंकि मेरे पास कैसा है ना, मेरा वही एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट प्रॉपरली है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ट्रेनिंग, कोर्सेस और प्लेसमेंट्स प्रॉपरली गारंटी के लिए देता हूँ। हेलो।
यस बोलिए। ओके एंड सर करंट कंपनी का सर अगर कैसे करेगा मैनेज होगा? करंट क्या? जैसे कि मैं करंट कंपनी में वर्किंग कर रहा हूँ, अगर बट उसे कोऑर्डिनेटर का एक्सपीरियंस लगाना हो तो फिर वो कैसे मैनेज होगा? अगर आपका करंट कंपनी है, वर्किंग आप कर रहे हो और उसका अगर पीएफ हिस्ट्री नहीं है, देन आई कैन मेंशन माय कंपनीज। तो अगर आपका पीएफ हिस्ट्री भी है और वो आप करंट कंपनी में अभी भी वर्किंग कर रहे हो ना, तो व्हाट ऑप्शन का आई हैव ना कि आपका मैं जो भी सीवी बनाऊंगा ना, उसमें आई कैन ऐड सम रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स विच आर रिलेवेंट, मतलब जो पावर बीआई के अकॉर्डिंगली होते हैं, लाइक पावर बीआई पे होगा, एसक्यूएल पे होगा, ऐसा। कि जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो ना, तभी आपका कैसा है कि कंपनी से ज्यादा आपका एक्सपीरियंस क्या, आपने क्या प्रोजेक्ट्स हैंडल किए हैं, कि उनको पता है कि आपको हायरिंग कर रहे हैं पावर बीआई के बेसिस पे, राइट? तो आपको पावर बीआई में कितना एक्सपीरियंस है, व्हाट टूल्स यू आर अंडरगोइंग, आपका क्या प्रोजेक्ट्स हुआ है, रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी कंपनी आपके क्या थे, तो उस पे मेन इंटरव्यूअर का फोकस रहता है। अगर जिस केस में पीएफ डिडक्ट हो गया उस केस में हम एक्सपेंस फिर लगा सकते हैं या नहीं? मैनेजेबल है, पॉसिबल भी है। ओके, थैंक यू। यस 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 सर। तो मेरा एक सवाल था सर। हेलो, हाँ बोलिएगा। तो इसके लिए एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया फॉर पावर बीआई फॉर दिस प्रोफाइल, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो एज सच कुछ नहीं है, बट कैसे भी ज्यादा भी नहीं होगा कि आप 42 प्लस हो, तो फिर थोड़ी मुश्किल आ सकती है फॉर प्लेसमेंट। ओके। सर अब्रॉड अपॉर्चुनिटी है क्या इसके लिए? अब्रॉड में भी है, हमारे प्लेसमेंट हो चुके हैं, बट पावर बीआई से ज्यादा डेटा एनालिटिक्स पावर बीआई के भी रहते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बट उतने आप कैपेबल होने चाहिए कि वहां के इंटरव्यूज क्रैक कर पाए। ओके ओके। हेलो सर, जैसे इंटरव्यूज में जो कम्युनिकेशंस रहता है, इसके बारे में कुछ सपोर्ट मिलेगा सर अपने को? हाँ, मतलब सच में कुछ आपको डिफरेंट क्लासेस है फिर उसके लिए लेता नहीं। इसके लिए हम कैसा करते हैं ना, जब मैं मॉक इंटरव्यूज लेता हूँ ना, हमेशा मैं 2 एचआर राउंड लेता हूँ। जिसमें फर्स्ट में यू कम टू नो कि आपको कम्युनिकेशन स्किल कितना बढ़ाना चाहिए, कितना आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। और सेकंड, जब मैं आपका मॉक इंटरव्यू लेता हूँ एचआर का ना, तभी आप वो बेटर प्रिपरेशन से आते हो। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको प्रॉपरली गाइड करता हूँ कि फर्स्ट इंटरव्यू में आपको क्या, कौन से पार्ट पे फोकस करना था, कैसे क्वेश्चन पूछे तो कैसे आंसर देना, उसको काउंटर कैसा करना है, एचआर राउंड में कितना इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से जानना चाहिए कि काउंटर क्वेश्चन आपको कम आए। तो ये सबका असेसमेंट मैं आपको पूरी तरह से देता हूँ। यस गाइस, और किसी को कुछ पूछना है दे कैन आस्क मी। और मेक श्योर कि कल से रेगुलर बैच चालू होने वाली है। सो आपकी तरफ से जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन आए उतना जल्दी बैच फुल हो जाए। तो फिर ऐसा नहीं चाहिए कि मैं अब 4-5 दिन बाद मुझे कॉल करो बट अब तक बैच फुल हो जाए। तो मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द डिसीजन लेके आप रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे या फिर जो भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन जिससे आपका बात हुआ है अर्बर में, आप उनसे कोऑर्डिनेट करके रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फीस जो है इसमें कुछ इंस्टॉलमेंट में ऐसा कुछ हो सकता है? हेलो। यस, नहीं वो आपको कैसा है कि वन टाइम ही पे करना पड़ता है। इसके लिए आपको वो लाइक जितने जल्दी हो वन टाइम ही आपको पे करना है। इंस्टॉलमेंट्स अलाउड नहीं है फॉर द रजिस्ट्रेशन फीस। सर फीस कितनी है रजिस्ट्रेशन? 10,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है जो आपको वन टाइम पे करनी है। उसके बाद आपका एनरोलमेंट होने के बाद वी स्टार्ट विथ योर प्रोसीजर, लाइक आपका रेगुलर सेशंस, फिर आपका जैसे सेशंस होता है लाइव लेक्चर्स, आपका सीवी मेकिंग, मॉक इंटरव्यूज एंड योर प्लेसमेंट कॉल्स। जब आपका प्लेसमेंट होता है उसके बाद आपको आफ्टर प्लेसमेंट की फीस पे करना है। ओके। तो जैसे मान लीजिए रजिस्ट्रेशन पावर बीआई के लिए कर लिया, लेकिन बाद में लगा कि दूसरी बैच कोई स्टार्ट हो रही है या फिर पावर बीआई में नहीं हो सकता है, तो वो केस में हम उधर स्विच कर सकते हैं या फिर उसके लिए अलग से रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ेगा? नहीं, फॉर दैट आपको फिर अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो भी आपने फीस भरा है
वो नॉन ट्रांसफरेबल है कि आप दूसरे बैच में जाके बैठ नहीं सकते। फिर आपको वहां पे अगर कोई दूसरी बैच आती है आपको इंटरेस्टेड हो तो फिर आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है 10,000 फीस का, क्योंकि मेरा हर एक कोर्स का फीस सेम ही है। 10,000 रुपीज ओनली वी चार्ज यू फॉर एनी कोर्सेस। यस गाइस, और किसी को कुछ प्लेसमेंट रिगार्डेड डाउट हो तो मुझे चाहिए तो आप 1-on-1 कल भी कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं, अगर आपको कुछ पूछना हो तो मैंने मेरा नंबर ड्रॉप डाउन कर दिया है चैट बॉक्स में। इफ यू फील यू वांट टू कनेक्ट विथ मी 1-on-1 आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई बात नहीं। एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। यस यस श्योर, बोलिए ना। हाँ, जैसे कि अभी मैं वर्किंग हूँ, तो ये जो टाइमिंग है इसके बीच में कभी कभार हमारी मीटिंग्स रहती है, वो टाइम पे अगर बैच मिस होगी तो उसका ऐसा अटेंडेंस का कुछ है अपना क्राइटेरिया? अटेंडेंस क्राइटेरिया है, बट अगर आपको जेन्युइन रीजन कुछ रहेगा ना, यू कैन इन्फॉर्म इन द ग्रुप या फिर आप सर से बात करके कर सकते हो। कि मैं कैसे कि फाइनल कॉल सर का लेता हूँ, अगर सर इज बैकिंग अप यू विद एक्सक्यूज तो मैं फिर भी आपको लेट गो करता हूँ। अब ऐसे आप सर को या फिर जो आपका रेगुलर ग्रुप होगा ना उसमें आप डाल सकते हो। तो आपको कोई सेशन मिस होता है तो हम और हर एक सेशन का आपका रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द डे 1 टिल द एंड डेट, जिसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम रहता है। और सर जो भी नेक्स्ट लेक्चर होता है, फॉर एग्जांपल आपका आज का लेक्चर मिस हुआ तो सर नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्टिंग के 10 to 15 मिनट्स रहता है ना, वो रिकैप देते ही है लास्ट लेक्चर में क्या किया। ओके। हेलो यस यस बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए ना। नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब जॉब का टाइमिंग भी रहता है, तो वो टाइमिंग में हम लोग कैसे अटेंड कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ और आपका जब सेशन चालू होगा तो कैसे अटेंड कर पाऊंगा मैं? ये मेरा क्वेश्चन है। तो सेशन टाइमिंग तो 7:30 to 9 है, क्योंकि मेरे हर एक बैच हाँ। में आई हैव सम 4 to 5 कैंडिडेट्स जैसा नाइट शिफ्ट रहता है, जिनका मतलब वर्किंग आवर्स ही इवनिंग में 6 से रात को 4-5 बजे तक रहता है। तो उनको मैं एक ही हाँ। सेशन देता हूँ कि जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है ना वो आप गो थ्रू कर सकते हो। आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो हम कैसा करते हैं कि सैटरडे संडे को Q&A सेशंस रखते हैं सर के साथ, तो आप तभी उनको अच्छा। पूछ सकते हो। या फिर जब आप डे में सेशन देख रहे हो या फिर कभी आपको दिन में टाइम मिलता है रिकॉर्ड सेशन, तभी आपका क्वेरी है ना जो आपके ग्रुप में डाल सकते हो या फिर सर के साथ 1-on-1 व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हो। तो संडे को नहीं होता क्या? संडे को सेशन नहीं रहते, नहीं आपके Q&A सेशंस रहते हैं सैटरडे संडे को। सर क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिकल टास्क एंड असाइनमेंट्स देते हैं, जैसे होमवर्क कैसा रहता है ना, सो यू हैव टू वर्क सैटरडे संडे और वो असाइनमेंट आपको मंडे के पहले सबमिट करना रहता है। अच्छा, मंडे के पहले सबमिट करना रहता है, लेकिन उसके लिए यस लैपटॉप ही लगे? उसके लिए हाँ लैपटॉप ही लगेगा ना? यस, वो पावर BI यू नीड अ लैपटॉप, नीड क्योंकि लैपटॉप। क्योंकि वो आपको सॉफ्टवेयर रन करना तो पड़ेगा कभी ना कभी। मे बी इनिशियली स्टार्टिंग का 1 वीक नहीं लगेगा, पर जब सर इंस्टॉलेशन सिखाएंगे पावर BI SQL कैसे इंटीग्रेट होता है पाइथन, तो उसके लिए यू नीड अ लैपटॉप। तो लैब में जो आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करके दोगे ना, प्रोजेक्ट जो हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर यस जो वर्क करेंगे, और राइट दैट वी राइट, वो विल। सर आपको वो सर आपको पूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं, लाइक बेसिक फ्रॉम इंस्टॉलेशन कैसे अपग्रेड करना है या फिर अपडेट करना है ना, वो सर आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। और सभी सभी लेक्चर ये सब ऑनलाइन ही रहेंगे या ऑफलाइन बैच भी रहती है कोई? नहीं नहीं, हमारे सब सेशंस ऑनलाइन लाइव सेशंस ही रहते हैं। ओके। और लास्ट का जो ये रहेगा, आप जैसे मॉक इंटरव्यू लोगे वो भी ऑनलाइन ही रहेंगे, राइट? यस, क्योंकि आपका वैसे IT में भी सेम होता है ना, तो वो भी आपको एक्सपीरियंस आना चाहिए। इफ यू फील कि आपको एक आधा मॉक आके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हमारे देना है, यू कैन कम विजिट द ऑफिस और आप दे सकते हो। ऐसा सच कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं। इफ यू थिंक कि आपको कॉन्फिडेंस सामने आके भी चाहिए आपको एक राउंड की फिजिकली आके आपका हो फेस टू फेस, तो आप वैसे भी कर सकते हो। ओके। यस गाइस, और किसी को कुछ डाउट है?
they can ask me. ओके गाइस, मैंने मेरा नंबर ड्रॉप डाउन कर लिया है. इफ यू फील कि आपको कल आके कुछ पूछना है तो मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो. और अगर आप यू स्टेइंग इन पुणे एंड यू वांट टू विजिट द ऑफिस ना, आप ऑफिस आके भी आज या फिर कल में आपको मतलब ऑफिस आके मुझे मिल के बात कर सकते हो. नो वरीज. सर आपका ऑफिस मुंबई में भी है? हेलो. नहीं, हेलो. पुणे में है हमारा ऑफिस. पुणे में हमारा हेड ऑफिस है, बांडेर में. यस गाइस, तो आज का सेशन हम एंड कर ले. मेक श्योर कि यू टेक योर डिसीजन फास्ट इनफ, क्योंकि सीट्स अगर फुल हो जाते हैं तो यू कांट गेट इन दिस ऑन गोइंग बैच, क्योंकि इसके बाद का जो बैच आएगा वो आईटी हायरिंग पीरियड के बाद ही आएगा. तो मेक श्योर कि ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें. तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करके कंटिन्यू फॉर योर रेगुलर बैचेस. ओके. हेलो सर, मेरा एक लास्ट सवाल था. अभी तक हाँ, बोलिए. ओवरऑल स्टूडेंट कितने प्लेस हुए मतलब? ओवरऑल मतलब पावर बीआई में पूछ रहे हो कि आप ओवरऑल पूछ रहे हो? और भी है. पावर बीआई में मेरे लास्ट 4 बैचेस में देखो, मेरा बैच ऑन एवरेज 30 का रहता है. उसमें से मेरा प्लेसमेंट रेशियो 85 to 90% है. मतलब ऑन एवरेज 25 से 26 जन मेरे प्लेस होते हैं हर एक बैचेस के. और ओवरऑल सर, ओवरऑल बैचेस समझो, ऑल कोर्सेस. ओवरऑल बैचेस के सब कोर्सेज के लास्ट लाइक आई गेस 4.55 ईयर से 600-700 प्लस हुए रहेंगे मेरे प्लेसमेंट कैंडिडेट्स, क्योंकि हम प्लेसमेंट्स भी करते हैं और मेनली फोकस हमारा कोर्स प्लस प्लेसमेंट के लिए रहता है. यस गाइस, और किसी को कुछ डाउट है आप मुझसे कल कनेक्ट कर सकते हो. मैंने नंबर ड्रॉप डाउन कर दिया है चैट बॉक्स में. यस गाइस, फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं. इफ यू फील कि आपको कुछ डाउट्स है, पूछना है रिगार्डिंग फीस प्लेसमेंट वगैरह, तो आप मुझसे कल कनेक्ट कर सकते हो. बाय गाइस, हैव अ गुड नाइट. थैंक यू सर. Thank you for joining. Yeah, thank you for joining.